हेलो एवरीवन, वेलकम टू रावण शो। ये रावण शो में आज हमारा क्रिकेट के ऊपर टॉपिक है और इस क्रिकेट पे हमारे पास है राहुल यादव, गगनदीप सिंह, सुशांत कुमार, सौरभ गुप्ता और जॉयदीप बैनर्जी, और जिनको हम दादा भी बोलते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है क्रिकेट के ऊपर, और क्रिकेट पे पहला टॉपिक पे हम स्टार्ट करेंगे। वाई हम क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते थे क्योंकि मैं बिल्कुल नॉलेजेबल नहीं हूँ, तो मेरी आज जो पैनल है बहुत नॉलेजेबल पैनल है क्रिकेट के ऊपर। तो हम मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वाई इज सचिन कॉल्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट इन तो इंडिया? काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है यार ये तो। क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है But और वी विल ऑल answer, हैव आवर answer I think अपना उतना ही simple होगा. It depends on one way or the other. जिस way whether you are in ask speaking in support or या आप उसके support में नहीं बोल रहे हैं. I think answer should be very simple. So I would probably would want to agree with this कि सचिन को God of cricket कहा जाता है इंडिया में. उसका there are very obvious reasons for that. Obviously इंडिया ने जो क्रिकेट लैंडस्केप में द फर्स्ट नोटिसेबल अचीवमेंट वाज दैट वी वॉन द 1983 वर्ल्ड कप. उसके बाद अंडर कपिल देव एंड ऑब्वियसली दैट टीम वाज फुल ऑफ लेजेंड्स. Then we also won in Australia 1987 something called Champions of Cricket or World Series, something like that. But 85. That was 85. 85 could be 85, right? But I think if in general अगर आप बात करें कि इंडिया में लोगों ने क्रिकेट कब से बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू किया या कब से उसकी फैन फॉलोइंग क्रिकेट की इंडिया में बड़ी है, so that is because of, I strongly believe that is because of one person, that is Sachin Tendulkar. The way he used to bat, the way he used to dominate, the way he used to score runs all over the world. लिटरली सचिन की वजह से लोग मैच देखा करते थे. एंड आई नो इन द 90s आई एम फॉर्चुनेट कि हमने वो 90s का वो वाला दौर देखा है जिसमें सचिन के आउट होते ही टीवी बंद हो जाया करते थे. So that is why I would say कि in India, if everyone, especially in that 90s and 20 early 20 generation, if they are associating themselves with cricket, that's because of Sachin. So that to me is a noticeable reason and a valid reason why he's called the god of cricket. ट्रू दैट, बट उससे पहले भी हमारे, तूने बोला ना कि 1983 जो था, ठीक है, उस समय मैं मानता हूँ कि उतने टीवीज थे नहीं लोगों के पास, मगर सोचता है कि उस समय अगर ज्यादा टीवी होते हैं इंडिया में भी तो ये लोग भी उतने ही चर्चित होते, जैसे गावस्कर है, कपिल देव है। करेक्ट, कपिल देव तो आज भी हैं, गावस्कर का भी लोग देते हैं, बट तेरे को लगता नहीं है कि बिकॉज ऑफ द टीवी इट प्लेड अप अ मीडियम, कि टीवी के वजह से लोग देखना चालू करे क्रिकेट और उसके वजह से ज्यादा फैन फॉलोइंग चालू हुई? I guess. Right. Okay. Somebody Sushant else. is trying to say something. Yeah. I would say it's not because of the TV. TV I agree is one medium, but I mean हम लोग जो है 83 के एरा में हम लोग थे नहीं, तो उस समय टीवी था नहीं था. I mean a lot of us have started watching cricket because of Tendulkar, and 16th November 2013, I think the day he retired, was one of the reasons for me to stop watching cricket for few years henceforth. And I'll tell you the reason. For 22 years, Sachin has carried so much pressure on his shoulders, and he has given so much to the game. It is not about TV. It is about the work ethics of Sachin Tendulkar. At the age of 14, you cannot imagine a person at the age of 14 working for playing for 12 hours a day, then practicing for 2 hours, then sleeping on the dining table because he had no other place to sleep. So doing this 14 hours for 55 days on a trot is not a easy thing to do. I mean, we slog our asses for 5 days a week, and then we want to rest for Saturday and Sunday. We do not want to do any kind of stuff related to the office. But this guy at the age of 14 started playing for 14 hours a day, and he did it across 55 days. So that tells you about his passion for the game, about the work ethics that he followed, and he was altogether different, and he was consistent all those 22 years. Right? So it is about what he has done for the nation for those 22 years, and how he has, as Saurabh very rightly mentioned, कि TV off हो जाते थे जब सचिन, even I remember NatWest Trophy. India was 144 for 4. The moment Sachin got out on Ashley Giles'
ball, we all switched off for television कि अब तो भाई कुछ नहीं बचा, अब तो सब खत्म हो गया. And then I mean because we were fan of the game as well, हम लोग रेडियो पे सुन रहे थे और रेडियो पे हमने सुना कि युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ have started turning the game around. Then was the time when we switched on the TV back. Otherwise, और आपको वो याद होगा क्वार्टर फाइनल 96 का क्वार्टर फाइनल जिसमें वो काम्बली रो रहा था, उसमें I think that was a semi-final. against Sri Lanka. Quarter final we won against Pakistan. Semi-final was against सेमीफाइनल. उसमें भी सेम, जब तक सचिन था लोग कितना खुश थे. सचिन का he was scoring also and he was scoring also 81 for 1 and 120 for 8. I still remember that. He was scoring वन साइडेड लग रहा था वो गेम उस टाइम जब तक सचिन था. सी इसके दो पहलू मैं ऐसे भी देखता हूँ, जैसे सुशांत ने कहा कि हार्डवर्क उसका था. ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे और लोग हार्डवर्क नहीं कर रहे थे. जैसे कि कई बार ये भी कहा जाता है कि सचिन वाज डेस्टाइन्ड टू बी ग्रेट बट राहुल द्रविड़ वाज डिटरमिन्ड टू बी ग्रेट. तो किसी और की ग्रेटनेस किसी से कम नहीं है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग थोड़ा सा 7-8 साल बाद आए. सचिन को थोड़ा सा कम प्रेशर महसूस होता होगा, लेकिन जो अर्ली 90s का दौर था या उसके बाद का भी दौर था जब वो अपना को सेटल कर रहे थे, गांगुली, द्रविड़ या और लोग, फिर भी ओनस सचिन के ऊपर ही होता था टू टेक द टीम थ्रू. मतलब कि उसको ऐसी बैटिंग करनी है और सब लोग जानते थे कि उस बंदे में वो बात है, लेकिन हर बार तो वो भी डिलीवर नहीं कर सकता. आफ्टर ऑल ही इज आल्सो ह्यूमन. तो आपका एक उसके साथ कनेक्ट बनता था, एक इंडिया टीम के साथ कनेक्ट बनता था उस बंदे की वजह से, जो मुझे लगता है. अजहर की कप्तानी हो या किसी और की कप्तानी हो, जब उनकी खुद की कप्तानी आई सचिन की, तो सचिन कुड नॉट डिलीवर एज अ कैप्टन. ये उनकी बुक में एक ऐसा भी जाता है कि यार वो कप्तानी के समय डिलीवर नहीं कर पाए. ये भी कहा जाता है कि वो अपनी बैटिंग अच्छे से नहीं कर पाए. तो ये हर बंदे के कुछ ना कुछ पॉजिटिव कुछ ना कुछ नेगेटिव होते हैं कि शायद वो अपनी बैटिंग पर फोकस उस समय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो टीम को देख रहे थे. और ऐसा नहीं है सचिन ने मैचेस सिर्फ अपनी बैटिंग से जिताए हो, कितने मौके ऐसे भी है जहां उन्होंने गेंदबाजी करके मैच बॉलिंग से मैच जिताए हैं. उन्होंने 5 विकेट लिए हैं. टाइटन कप का वो मैच मुझे आज भी याद है 97 का, जहां पर साउथ अफ्रीका, मतलब आज इंडिया ने जो स्कोर किया 220, किसी को नहीं लग रहा था कि 220 तो कहीं से भी डिफेंडेबल है. और वो उन्होंने, मैं अगर गलत नहीं हूं तो शायद 70 या 80 रन से वो मैच जीत लिया था. तो उस 220 के कंपैरिजन में 70-80 रन से मैच जीतना, सचिन की कप्तानी में वो ट्रॉफी जीती इंडिया ने. वन ऑफ द वेरी, जैसे कहेंगे कि एक उनके कप्तानी में इतनी ट्रॉफीज हमने नहीं जीती, लेकिन वो बहुत बड़ा मैच था जिसमें गैरी कर्स्टन जैसे बड़े प्लेयर थे, पैट्रिक सिमकॉक जैसे बॉलर थे, यहाँ पे हैंसी क्रोनिया खुद कप्तान थे, और मेरे ख्याल शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो लांस लूजर नए आए थे उस समय उस दौर में. तो उस लिहाज से भी उन्होंने काफी हार्डवर्क किया है. हार्डवर्क सब प्लेयर्स करते हैं. फर्क ये होता है कि रंग किसी किसी को लगते हैं, डेस्टाइन्ड कोई होता है, डिटरमिन्ड कोई होता है. तो मैं इस बात से एग्री करता हूं कि उनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है. मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, वो गॉड ऑफ क्रिकेट सिर्फ अपने क्रिकेट खेलने की वजह से नहीं है. उनके साथ दूसरे फैक्टर्स ये जुड़ते हैं कि वो बहुत हम्बल आदमी लगते हैं. जो उनका कंडक्ट रहा है आज तक 20-22 साल 24 साल जो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, ऑफ द फील्ड बहुत अच्छा कंडक्ट रहा है. ऑन द फील्ड वाइल फील्डिंग उनका कंडक्ट बहुत अच्छा रहा है. आप कभी भी उनको ऐसा जलाते हुए नहीं देखेंगे. राइट, एक जेंटलमैन गेम जिसे कहा जाता है, वो कोशिश की उन्होंने मेंटेन करने की. उसको बहुत अनब्लेमिश्ड कैरेक्टर रहा है उनका ऑन द फील्ड. ऑफ द फील्ड आप कभी भी उनसे कुछ देखें, ये नेवर, आई थिंक, मुझे तो याद नहीं है कि उन्होंने शायद किसी लीकर का एड भी प्रमोट किया हो, तो मुझे ये याद नहीं आता. राइट, तो he in fact declined to also put win sticker on his bat. Absolutely. 1996 में they were the key sponsors. When title sponsors, right. Yes, they were the title sponsors. So ये बहुत चीजें, और जहां तक मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत मैंने और थोड़ा पढ़ा था कभी, कि वो बहुत सारे ऐसे एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं जहां वो चैरिटी करते हैं, डोनेट करते हैं. तो वो बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं. अच्छी बात है वो सामने नहीं आता. अगर सामने आएगा तो वो चीज अच्छी भी नहीं लगती है एज ए किसी बड़े आदमी को. मैंने सुना ही है सिर्फ, मैं इसके बारे में कोई फैक्ट्स नहीं प्रेजेंट कर सकता, बट आई बिलीव कि वो ऐसा करते होंगे. तो मैं जिस वजह से क्रिकेट मैंने देखनी शुरू की थी, मुझे नहीं पता था कि मैंने 90s के बहुत शुरू में देखनी शुरू की थी, तब शायद मुझे सचिन का नाम भी नहीं पता था. उन्हें खेलते हुए 2-3 साल हुए थे, मेरी खुद की उम्र 7-8 साल थी. लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इंटरेस्ट बना, देखते चले गए. सचिन के बैट पर कोई स्टिकर नहीं था 96 के वर्ल्ड कप से पहले, कोई स्पॉन्सर नहीं था उनके पास. जबकि वो 92 में 91-92 ऑस्ट्रेलिया टूर में पर्थ के ऊपर शतक जड़ चुके थे, और 89-90 में उन्होंने अपना पहला शतक ओल्ड ट्रैफर्ड में मारा था.
इंग्लैंड में, अब भी कोई स्पॉन्सर नहीं था उनके पास। तो ये सिर्फ उन्होंने स्पॉन्सर्स कमाने के लिए या अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए नहीं किया। वो उनके पास, आप उनके वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड देख लीजिए, मतलब मेरे को तो याद नहीं है किसी प्लेयर के 6-7 वर्ल्ड कप में 2,500 प्लस रन हो। तो एवरेज उनकी आप देखें, अगर 5 या 6 उन्होंने वर्ल्ड कप खेले हैं तो 500 रन एवरेज आता है उनका पर वर्ल्ड कप का। कितने प्लेयर्स ऐसे कर पाए? बट एक चीज सचिन के बारे में हमेशा बोली जाती है, व्हिच आई एम नॉट श्योर राहुल हेल्प करेगा। एक मिनट, अभी अगर फेवर में चल रहा है तो जॉयदीप दादा। हाँ, तो मेरा पर्सपेक्टिव भी सेम ही है। इनफैक्ट आई एग्री विथ मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव स्पोकन अंटिल नाउ। आई डू बिलीव दैट ही इज रियली द गॉड ऑफ क्रिकेट। जब see, I was born in 1981, so I was about 6 years old when I for the first time heard about Sachin. ठीक है, so I think it was 87 or 88 जब मतलब मेरे कॉलोनी में बहुत सारे क्रिकेट एंथुसियास्ट थे। उनमें से एक अंकल थे who would keep telling me that there is a 14 years old guy who has the ability to hit Kapil Dev for a six. And in fact, I had heard that in one of the matches he had hit Kapil Dev for a couple of sixes. So we were all excited कि ये बंदा कौन है यार, कपिल देव को सिक्स मारने वाला, तब मतलब 14 साल का। And then the day came when मुझे मतलब हमें पता चला कि हाँ, there is a guy who is about I think 16 years something था। तो राइट, पॉज हो गया उनका, ड्रॉप हो गया क्या? I think he was getting a call. He's getting He's back. I'm disconnecting also. I don't know why. Not the right time to get a call now. Okay. So imagine a guy who was just about 16 years, and he had the guts to accept Pakistan tour. And Pakistan at that time, if you all remember, they had the likes Wasim of and Wasim Waqar Akram. were on their peak. Waqar was also on his No, debut. Waqar, that was his debut series, right? Yeah, Waqar and Wasim Akram Sachin was both, lethal during that time. Abdul Qadir. Yes, yeah, Abdul Qadir was there, and then the most dreaded Imran Khan. So he was also quite a handful bowler. So वहाँ पे see that why Sachin is the god of he's regarded as the god of cricket. There are 3-4 aspects. एक, he was fearless, okay, and मुझे लगता था कि वो he doesn't care about मतलब he was so passionate. He just wanted to keep playing, or that is what makes him different from anybody else. तो उसका ये था, फोकस ये था कि जस्ट मुझे जाके खेलना है। और जैसे आई थिंक गगन और somebody said कि he used to practice 14, 15, 12 hours, 13 hours a day. He was immensely gifted, तो उसको उतना प्रैक्टिस का जरूरत नहीं था, but he just wanted to ensure कि नहीं he was always not नहीं होना चाहता था, yeah, he never wanted to be complacent, right? He never wanted to be complacent. वो ऐसा नहीं सोचते थे। हाँ, और अगर आप उसके पूरे करियर को देखे तो देयर वर टाइम्स कि जैसे अभी उसका टेनिस एल्बो आया था, सो एट दैट टाइम आई वाज अ बिग ह्यूज सचिन फैन। तो मुझे आई यूज्ड टू फॉलो हिम लाइक एनी अदर ग्रेट सचिन फैन, ठीक है। तो एक टाइम पे ऐसा लगा था कि आई थिंक दैट कुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ हिज करियर, क्योंकि देयर वाज अ टाइम व्हेन ही वाज नॉट इवन एबल टू लिफ्ट अ प्लास्टिक बैट। ऐसा मतलब आई डोंट नो वेदर इट वाज true, but I've heard him saying that he was not even able to lift. But देखो, the way he came back, so he was so passionate, he worked so hard on everything. He came back, and then there was a different Sachin after that. So and then the way he connected with the people, the emotion that he brought, that emotional attachment, like ये तो commonly सभी बोलेंगे कि Sachin in the 90s, जब in fact I was also one of them, कि अगर सचिन बैट कर रहा है तो no matter what. In fact, I'll give you a example. मेरा it was 1999 and I'd watched Sachin for 10 years. फिर भी मैं बोर नहीं हुआ था, and he was somewhere around 160s or 170s against New Zealand, and we thought this is probably a great opportunity for Sachin to score a double century. और उसी दिन मेरा English 3 का एग्जाम भी था। तो I was not revising. I was so crazy about Sachin. I was not revising. तो मुझे पता था कि ठीक है, वो एग्जाम फेल भी हो गया तो I'll still make it to class 12.
ठीक है, but this opportunity of seeing Sachin Tendulkar scoring 200 for the first time may never come. I will never come in life, क्योंकि first time is always the first time. आप मानोगे और नहीं, एक just exam. So this is that emotion. So वो that everything put together, ये जो मतलब that's why it's not just because of the runs he scored. See, again, if you talk about the records, so not just about the runs. It's about, as somebody told, about his humbleness, simplicity, grounded nature, everything put together. बेसिकली क्या है कि एक जो स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स आप ले लो या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है ना, उनके जो स्पोर्टिंग करियर होता है उसमें कुछ डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं जिससे यू नो दे आर रिकॉग्नाइज्ड. So according to me, I don't think anyone has got more and more defining moments as Sachin. So defining moment one is 1997-98 Sharjah, where you know it was saying that it's not a desert storm, it's a Sachin storm. I don't think anyone else could have done what he did. Then another one is the 1999 World Cup. So the fact that his father died, he was so attached with his father, he had to return, and then he had the guts to fly back the next day of the funeral. And not only that, he in the next match he played, straight after attending his father's funeral, he attended 100, I believe, in England. And then so you know, these are that's a defining moment. Then we also know that another one which not many people talk about is Australia mein, Sydney mein, he scored 240, which is his highest test score. And on that one, he did not even play a single cover drive, which is like the feature, a hallmark of his batting. So you can imagine कि उसने कितना अपने आप को कंट्रोल किया, बिना कवर ड्राइव को 250 रन मार गया बंदा. और उसके बाद जो फाइनल वन था, जो कि अगेन नॉट मेनी पीपल टॉक अबाउट, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2007 का नहीं खेला. वी जस्ट सेड कि ये T20 है, ये बहुत ही ज्यादा यंगस्टर्स का है, पीपल विद लेट 30 वुड नॉट प्ले इट. देन ही प्लेड IPL, उसने IPL में भी ही स्कोर्ड 100 इन अ T20 मैच. So I think there are so many moments that defines his career and defines his greatness. That is why he is the god of cricket to me, because he's got so many. I mean, आप उसको किसी को भी ले लें, रोनाल्डो, कोई भी, whatever, पेले, you'll just say, oh, he just scored a goal, hand of God. उसके अलावा क्या है उसके करियर में, that you can say is a defining moment. Similarly, Ronaldo, he probably won them a World Cup, right? So Sachin के करियर में there are so many. That's why makes him a great. See, I'll just add, yeah, guys, go on. Somebody was saying something. I'll just this is Joy. I'll just add two more points here. He also had the ability to pick up leaders. I'll tell you an example. 99 May, when we were in South Africa, not only Mahendra Singh Dhoni, I think a lot of people doesn't know that even Sourav Ganguly was in the contention because of Sachin Tendulkar's advice. So तब क्या होता था कि जब Sachin was Sourav और Sachin वो बात करते करते मतलब Sourav used to give some inputs and all. जब Sachin had already called out कि नहीं, I think I'm going to call it quits in terms of captaincy. I don't want to continue. तो तब he had tipped off कि Ganguly could be a very good captain. And similarly, जब 2007 में when we were talking about a new captain, जब Rahul Dravid was when everybody decided that So I think 2007 was the first when Mahendra Singh Dhoni was made the captain. After the 50 over World Cup debacle, after the 50 over World Cup debacle, there were talks around that captain. Right. और तब भी सचिन ही था जिसने धोनी को मतलब टिप टॉप किया. धोनी can be a great captain. And just look, मतलब ये गांगुली, धोनी, who everybody knows कि कैसे लीडर्स बने वो लोग. So मतलब सचिन है तो मतलब he could do anything. ऐसा था. मेरे पास भी कुछ पॉइंट्स हैं. तो अगर हम वापस जाते हैं, जब सचिन का डेब्यू हुआ था 1989 आई गेस, राइट, 89. ओके, तब वो छोटा सा 16 साल का बच्चा था. तो पाकिस्तान जाते हैं और वहां पे इमरान खान देखते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई ये बच्चा किसको लेके आए हो तुम, इसके तो स्कूल चल रहे होंगे. तो कपिल देव बोलते हैं कि भाई बच्चा नहीं, उसको खिला उसको पहले, तब तेरे को पता लगेगा. No, actually he was taunting Sachin, right? That was taunting Sachin. तो उसने वसीम अकरम को बुलाया कि भाई इसको 2-4 बॉल करा जरा.
तो उसने बाउंसर मारी, उसने डक किया, जो भी किया, ठीक है, और स्विंग में उसने अच्छे से खेला, बिकॉज सचिन वॉज अ चाइल्ड प्रोडिजी, राइट, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग था बचपन से ही वो, ठीक है, तो वहीं से उसका पता लग गया था, और वहां पे भी उसने अब्दुल कादिर को लगातार 4 छक्के मारे एक मैच में, एग्जीबिशन मैच में, राइट, एग्जीबिशन मैच था, और अब्दुल कादिर ने बोला कि भाई मैं ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बच्चा समझ आराम के से डाल रहा अपनी था, फुल राइट, स्ट्रेंथ बॉल डाल रहा था उसको, कर रहा था, हाँ हाँ, और Right. उसने निकल के 4 छक्के मारे। अब्दुल कादिर प्राइम पे था उस टाइम बिल्कुल में, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं से उसको पता लग गया, ठीक है, और मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं उसके, उसकी फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी जो थी वो 1990 में, जब वो 17 साल का था, 17 साल में, तो जब 17 साल में पता तक नहीं होता भाई हमें करना है क्या है लाइफ में, वो भाई वहां जाके ओल्ड ट्रैफर्ड में सेंचुरी मार रहा था, छोटा सा बच्चा। और सबसे बड़ी बात ये राहुल, मैं इसमें ऐड कर दूं, और उस समय विदेश में शतक मारना किसी भारतीय के लिए अरे भाई बहुत मुश्किल था, बहुत बड़ी बात होती इम्पॉसिबल, थी, बहुत बड़ी बात होती थी कि हमारे 17 किसी साल का बच्चा और ओल्ड इंग्लैंड ट्रैफर्ड में में, सेंचुरी मार रहा है। यस, उसके स्विंगिंग बाद विकेट पे, राइट, सुनो, नेक्स्ट जो नेक्स्ट टूर होता है इंडिया का, वो होता है ऑस्ट्रेलिया में, राइट, और ये पहली बार ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला था सचिन, पहली बार में सेंचुरी, ठीक है, पहली बार सिडनी में खेला सेंचुरी, पर्थ में खेला, वहां से पर्थ गए, पहली बार पर्थ में खेला, सबसे तेज पिच सेंचुरी, यस, और भाई था सिर्फ 18 साल का, 17-18, करेक्ट। और छोटा सा अब एक बच्चा, might be common, हाँ, और अभी सुनो कॉमन है 17-18 साल। Yes. हाँ, फोर्थ बोलो। सेंचुरी, सुनो तो लो भाई, फोर्थ हाँ, सेंचुरी हाँ, जोहानिसबर्ग, हाँ, तो उसकी जो पहली 4 सेंचुरी वो इंडिया में है ही नहीं, राइट, हाँ, करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ से उसने स्टैंप लगा दिया था कि ग्रेटनेस का स्टैंप लग चुका है अब, जीनियस। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैं ना, जैसे कमेंट, आई एक्चुअली लव कमेंट्री अ लॉट, राइट, तो इसमें जितने भी पुराने आप मैचेस देखेंगे ना यूट्यूब में, उसमें आप देख रहे हैं सचिन बैटिंग पे आ रहा है, उसने 20 किसी में दिखा रहा है 27 मैच ही खेले हैं अभी, बस 1000 रन ही बनाए हैं, ठीक है, बट द वे एवरी कमेंटेटर वुड इंट्रोड्यूस, ओके नाउ द जीनियस इज एट द क्रीज, आई मीन हाउ ऑफ्टन यू हैव एक्चुअली सीन, मास्टर ब्लास्टर तो बहुत बाद में आया है, हाउ ऑफ्टन हैव यू सीन कि एक बंदा जिसने 30-35 मैच अभी खेले नहीं है, 1000 रन अभी बनाए नहीं है, उसको जो है एवरी कमेंटेटर इज सेइंग नाउ द जीनियस एट अ क्रीज। ज्यादातर आप देख लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, इंडिया में, they will just introduce him as like a genius at a very early stage of his career. And the big thing is that even Indian commentator नहीं, foreign commentators उसे ये बोल रहे हैं, ये नहीं कि हमारे कोई commentator हो, बहुत से जो foreign commentators हैं, they have been fan of referring to him as a genius, right? आपको याद होगा जब वो अपने लेटेस्ट स्टेज पे, जब वो रिटायरमेंट की स्टेज पे था, कहीं पे भी जाता था, उसने मतलब अनाउंसमेंट ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं करता, लेकिन लोगों को लगता था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में इनको लगता था कि दिस कुड बी हिज लास्ट टूर, हर ग्राउंड में उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता था, हर ग्राउंड में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे मतलब रिगार्डलेस कि वो 0 पे आउट हो गया या फिर 100 बनाएगा। राइट। तो सचिन इज ग्रेटनेस, सचिन के साथ ये जो जुड़ी हुई है बातें, ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं, तो वो दौर इस तरीके का था जिस समय उस समय गेंदबाजी का लेवल अलग था। अब ऑब्वियसली वो 90 के दशक से पहले और भी बढ़िया लेवल था गेंदबाजी का, लेकिन और मैं मॉडर्न सचिन एरा को में मैं सचिन को बोलता हूँ गांधी ऑन फील्ड, मतलब पूरा दम है लेकिन इमोशन नहीं दिखाता बंदा, ठीक है, वो अपने बैट से, मेरे को एक चीज याद थी जिसमें ब्रेट ली ने ना उसको एक बीमर मारा था, उसको कंधे पे लगा था, उसके बाद चौके लगे, ठीक है, उसमें ब्रेट ली ने आके अपोलोजाइज किया, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट बॉल पे उसने बैक फुट पंच मारा स्ट्रेट टप, बहुत ही तगड़ा। जैसे अभी राहुल हेनरी अलोका वाला, हाँ वो भी दादा आपने बोला था, उसके पास एबिलिटी थी, he was God gifted। मैं इस पॉइंट को, मतलब उसके पास एबिलिटी थी, he was God gifted, मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट इसलिए भी करूंगा, सचिन के साथ जब डेब्यू किया था तो विनोद कांबली भी था, एंड विनोद कांबली आल्सो oozed a lot of talent, उसके पास टैलेंट, लेकिन विनोद कांबली ने अपना लास्ट टेस्ट मैच खेला व्हेन ही वाज 22 years of age। वो लास्ट टेस्ट मैच उसका क्यों था, क्योंकि कॉटनी वॉश ने उसको एक बाउंसर मारी और उसको नहीं पता था कि वो बाउंसर कैसे खेलते हैं, तो उसको मतलब बाउंसर खेलने का टैलेंट नहीं था, एंड दैट वाज हिज लास्ट टेस्ट मैच। तो तेंदुलकर टैलेंटेड था, बट द पैशन फॉर द गेम और उसको अपने स्ट्रोक्स
प्रैक्टिस करने का, जिस तरह से वो प्रैक्टिस करता था, जिस तरह से वो गेम को अप्रोच करता था। 2003 का वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया मेड 359, वी हैड टू मेक 360। और देयर वाज अ इंटरव्यू जिसमें जो है हर्षा भोगले ने पूछा था कि व्हाट वाज द डिस्कशन इन द ड्रेसिंग रूम। तो सचिन की जो अप्रोच थी, एवरीबॉडी वाज लाइक, उस समय 360 स्कोर करना बहुत बड़ी बात थी। आई मीन नोबडी वुड हैव ड्रीम्ड ऑफ कि हम 360 स्कोर करेंगे, और इंडिया कर भी नहीं पाई। फाइनल में मतलब वर्ल्ड कप फाइनल में हम लोग 243 ऑल आउट हो गए थे। बट सचिन की जो ड्रेसिंग रूम में अप्रोच थी कि हम लोग इस टारगेट को 360 की तरह नहीं देखेंगे, हम इस टारगेट को देखते हैं कि हमें 50 ओवर में हर ओवर में एक बाउंड्री मारनी है। इफ वी डू दैट, तो हमने 50 बॉल पे 200 रन बना लिए। व्हाट इज द टारगेट लेफ्ट इज 160 ऑन 250 बॉल। डू यू थिंक इट इज अप्रोचेबल? वो लोगों को अप्रोचेबल लगा। और सबसे बड़ी बात थी उस समय कि आप मैकग्राथ को पहले या दूसरे ओवर में उसकी लेंथ से हटाना रहता था मैकग्राथ को, वरना अगर मैकग्राथ अपनी लेंथ पे आ जाए 10 ओवर में जो है 25 या 30 रन देके जाता था, इससे ज्यादा कोई स्कोर भी नहीं कर सकता। वो चीज सेकंड ओवर में तेंदुलकर ने क्रीज से बाहर निकल के स्टेप आउट करके मैकग्राथ को मारना शुरू किया था, ताकि उसको लेंथ से हटा के उसकी, ताकि जो हम लोग की अप्रोच थी वो पूरी हो सके। बट हम लोग वी डिड नॉट मेक इट टू 360, 243 पे आउट हो गए थे। बट दिस वाज द अप्रोच ऑफ द गेम। और 2003 वर्ल्ड कप में मेरे को एक और चीज याद है कि देयर वाज अ मैच जब उससे कहा गया था कि एक रनर ले लो, एंड ही रिफ्यूज्ड। तो इंटरव्यू में जब पूछा गया कि व्हाई हैव यू रिफ्यूज्ड अ रनर, तो उसने बोला कि रनर मेरे से ऑलरेडी 2 यार्ड्स पीछे है, मैं किस बॉल को कहां खेलने वाला हूं और मैं किस बॉल को कितनी धीरे मारूंगा, उस पे सिंगल आएगा कि डबल आएगा, ये मेरे को शॉट खेलने से पहले पता है, वो रनर को नहीं पता है। ये मेरे को पता है शॉट खेलने से पहले, इसलिए रनर मेरे से ऑलरेडी 2 यार्ड पीछे है। तो अगर मैं रनर ले लूंगा तो रनर हो सकता है 2 यार्ड पीछे भागे और मैं रनर से 2 यार्ड आगे भाग जाऊंगा, इसलिए मैं रनर नहीं लूंगा। एंड ही ऑल्सो मेंशन कि माइकल शुमाकर जब रेस करता है तो वो 5th लाइट पे नहीं स्टार्ट करता है, वो स्टार्ट कर देता है 1st लाइट पे। 5th लाइट इज ओनली द ट्रिगर टू प्रेस द एक्सेलरेटर। तो so passionate about the game कि that made him the god of cricket। और बाकी शॉट्स की तो मैं क्या ही बात करूं, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, लेग ग्लांस तो जो है के डंडे से भी मार देगा, मुझे ऐसा लगता था उसको लेग ग्लांस। He was such an intelligent cricketer. Abhi, I don't know whether you guys have heard of that incident about how to New Zealand was playing in India, and Rahul Dravid and Sachin both were batting together. Chris Gaines was bowling. So the ball was moving in both the directions. So it was getting very difficult for Rahul Dravid to judge कि outswing मारेगा, in-swing मारेगा, because he was not able to properly see कि वो Chris Gaines ball मतलब किस side में ball shine रख के ball कर रहा है। तो both of them discussed, and Sachin came out with an idea. तो उसने बोला कि अगर if I see that Chris Gaines would put a outswinger, मैं bat अपना left side में रखूंगा. So you look at me, you don't look at the bowler. And if I keep my bat on the right side, so आपको पता चल जाएगा it's going to be an in-swinger. तो ये डिस्कशन करने के बाद क्या हुआ कि Rahul Dravid started hitting Chris Gaines for a couple of boundaries. Chris Gaines was like, अरे ये क्या हो रहा है? Then after some time they kind of recognized or realized that these guys have already cracked it. तो फिर क्या हुआ ना, Chris Gaines ने फिर टीम को वो scrambled रखा. Okay, scrambled रख के उसने बॉल किया. उसके बाद then he came back to Sachin and said, now what do you have for this? But he didn't realize that Sachin had also told Rahul Dravid that if I'm not able to figure out कि ये outswinger होगा कि in-swinger होगा, I'll put the bat in the middle. Rahul, so this is the greatness. Such is greatness. ये मैं बार-बार कह रहा हूँ, क्योंकि यही एक प्लेयर को ग्रेट बनाती है कि कैसे उसने गेम को जज कर दिया और दूसरे प्लेयर को किस तरीके से हेल्प की। आप ये देखिए, ये अप्रोच देखिए आप उस आदमी की कि क्या उसका क्रिकेटिंग माइंड है, क्या उसका थॉट प्रोसेस है। जब वो खेल रहा है तो वो पूरा तरह से उसमें घुसा हुआ है कैरेक्टर में कि मेरे को ये हर चीज का ध्यान रखना है कि बॉलर क्या कर रहा है और दूसरे प्लेयर को कैसे खिलाना है।
तो ये मेरे नाम ख्याल इसका से एक चीज और सचिन को गॉड बनने में सपोर्ट की, वो था 90s का एरा, बिल्कुल। जो हाँ। इंडिया की सिचुएशन थी उस टाइम। हम्म, क्योंकि इंडिया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन था नहीं, ठीक है, और इतना कुछ था नहीं हमारे पास। इंडिया एक स्टिल वॉज अ डेवलपिंग कंट्री, हमारे पास इतना कुछ करने को नहीं था, ठीक है। ले दे के एक बॉलीवुड था, वही उसमें घिसी पिटी पिक्चर चलती रहती, और एक क्रिकेट था एक हमारे पास खेल, जिसमें हमारी टीम बहुत ही घटिया टीम थी हमारी, हमेशा हारती रहती थी उसमें। एक मतलब अंधों में काना राजा नहीं बोलूंगा, एक ब्राइट स्पॉट वो आया। ब्राइट स्पॉट था वो। अंधों में काना राजा अलग चीज होती है। मेरे को वो इनिंग एक याद है, एक इनिंग मुझे, क्वाड्रेंगुलर सीरीज हुई थी जिसमें इंग्लैंड थी, इंडिया था, 2 टीम्स और थी, मुझे याद नहीं है। उसमें एक इनिंग्स में किसी में इंडिया चेज कर रहा था और ऊपर के 2-3 प्लेयर आउट हो गए थे। ऑब्वियसली सचिन ने ओपन किया था। वो उन दिनों मार्क इलम वगैरह खेला करते थे और बहुत उनके पास ना मीडियम बॉलर्स होते थे इंग्लैंड के क्वाड्रेंगुलर पास। से शारजा में जो हुई थी, मे बी शारजा थी, आई डोंट उसमें, रिमेम्बर द हाँ, वेन्यू। उसमें वेस्ट इंडीज थी, इंग्लैंड थी, पाकिस्तान, इंडिया। राइट। तो एक मैच चल रहा था उसमें इंडिया और इंग्लैंड का, मतलब इंग्लैंड ने कुछ स्कोर किया, ऑब्वियसली 250 के प्लस था, कुछ था, इंडिया को चेज करना था। इंडिया हार गया वो मैच, लेकिन उसमें 94 सचिन ने स्कोर किए थे, 94, आई स्टिल रिमेम्बर। वो इनिंग्स किसी 100 से भी शायद ऊपर थी। ऐसी उसकी बहुत सी इनिंग्स है जहां पे लगेगा यार, मतलब इंडिया तो बहुत जल्दी आउट हो गई, उसमें से 90-95 रन उसके होते थे। तो वो चीज जो है कि वो वन मैन आर्मी वाला जो सीन था ना हमारे साथ, इस वजह ये चीज भी थी कि जो सचिन को बड़ा बनाती है, गेम को बड़ा बनाती है। ऑब्वियसली गेम इज वे बिगर देन सचिन, बट सचिन ने एक तरीके से अक्रॉस द ग्लोब जो भी क्रिकेट देखते हैं उनको मजबूर कर दिया था गेम देखने के लिए, गेम समझने के लिए, गेम के हाँ, हम निटी-ग्रिटी ये में कह सकते घुसने के हैं कि लिए। अगर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 90s में अगर सचिन नहीं होता तो क्या पता कि क्रिकेट डेड होती है इंडिया में, मतलब इस लेवल की नहीं होती। राइट, जो हम क्योंकि आज हैं, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि बहुत ही खराब कंडीशन थी इंडिया की उस टाइम। करेक्ट। वहाँ पे एक somebody was talking about Sachin's captaincy. I agree. वो he could not succeed as a captain. But उसमें ना there is a catch. Okay, he was going, जब वो captain बना, at that time India was going through a very lean phase, क्योंकि तब बहुत ज्यादा match fixing हो रहा था, ये हो रहा था, ठीक है। And I'll tell you, his average as a captain in Test is more than 50, which is, I think, for any captain, it is a very good record. But yes, in terms of winning, हम नहीं कर सके. I'll give you one small example. कुछ न्यूजीलैंड इंग्लैंड इंडिया न्यूजीलैंड का टूर था, एंड somehow अंशुमान गायकवाड got a tip off कि हमारे 3-4 प्लेयर्स, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स ऑफ दोस प्लेयर्स बिकॉज वो भी एक टाइम पे we used to follow them and we were great fans of them, but okay, जो भी हुआ है, तो उसको somehow he got a tip off that कि ये सारे 3-4 प्लेयर्स बिग गए and they are all going to get run out. So what do we do now? तो अंशुमान गायकवाड, हम क्या करते, जब हम हेल्पलेस हो जाते तो हम भगवान के पास जाते हैं, ए भगवान बचा ले। तो ही वेंट टू द गॉड, तो सचिन के पास गया, सचिन को बोला भैया देख ऐसा ऐसा हो रहा है, सचिन यू आर द ओनली गाय हु कैन कुछ कर सकता है, तो तू ही कर सकता है। यू नो व्हाट, सिंगल हैंडेडली वो पूरा का पूरा सीरीज और वो मैच भी सचिन ने अकेले सिंगल हैंडेडली जिताया। और जो बाकी 3-4 प्लेयर जो रनआउट हुए, उसी पैटर्न में रनआउट हुए, ठीक है, बट सचिन वाज अलोन इनफ टू टेक इट थ्रू। तो और यार इसीलिए सचिन का स्टैंडर्ड उसने इतना हाई कर रखा था, जब उसका लीन पैच भी होता था ना, अगर उसकी मतलब 60 रन मार के आउट हो रहा है, लोग कहते थे यार ये क्या बकवास खेल है। मतलब 60-70 रन मार के अगर आउट हो रहा है ना वो, तो एक्चुअली उसका राइट, आप सही कह रहे हो कि वो, हाँ, वो उसका स्टैंडर्ड खुद इसने इतना हाई कर लिया था कि अगर 70 मार रहा है तो उनको उम्मीद थी कि अब तो 100 बन गए। 30 कितने यार, जब 70 ही बना दिए तो 30 कितना बचा, भी बना देगा ये। वो जो लेट 2000 में ना, जब उसका लीन पैच था, वो ज्यादा स्कोर नहीं करता, उठा के देख लो, उसके 50 की एवरेज है। और ये तो हम सबने किया होगा ना कि अगर हम मैच नहीं देख पाए, मैच इंडिया हारे चाहे जीते, सचिन ने कितना, सचिन का स्कोर पता है, राइट, सचिन का स्कोर कितना है, राइट, इंडिविजुअली कितना स्कोर किया, राइट।
एक ऐसा ही मैच था इंडिया पाकिस्तान का, इंडिपेंडेंस कप फाइनल था, जिसमें लास्ट में ऋषिकेश कानितकर ने बाउंड्री मार के हमें मैच जिताया था। अगर आप जिसमें रशीद लतीफ ने लास्ट में बोला था कि हम क्या करें हमारे लड़के अच्छा नहीं खेले। हाँ, 26 बॉल में 41 रन, उसमें ओपनिंग दिया था उसने। वो आप मैच देखिए, अजहर महमूद का जो उसने भूत बनाया है इस मैच में। 4-5 चौके इकट्ठे मारे उसे, 26 बॉल में 41 मारे थे। वो मतलब उस दिन ऐसा लग रहा था तो शायद वो टोन, राइट, तो वो टोन सेटअप नहीं होता, नहीं होती वो। उसमें अगर आप देखें ना, सौरव गांगुली जो काफी स्लो खेला, उसने शतक मारा है उसने शतक मारा, बट उसने बॉलें बहुत खाई हैं, तो जो बॉलों का गैप है ना, वो पहले पूरा कर गया था वो। राइट। और वही उनकी स्ट्रेटेजी थी कि एक उसको पता है कि ये रिस्क लेगा, ये खेलेगा, दूसरा आगे बाद में लंबा जाए, राइट, एक लंबा जाए, राइट। एक और मैच उनका जो पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो 2003 वर्ल्ड कप, आई थिंक मैंने उससे अच्छी बैटिंग उसकी कभी किसी उसमें नहीं देखी। उसमें तो जो उसमें आप देखो, शोएब अख्तर है, वकार है, वसीम है, दे आर प्लेइंग, आई थिंक डरबन में, जोहानसबर्ग में खेल रहे हैं, या डरबन में खेल रहे थे कहीं, तो जो कि बहुत सेंचुरियन में खेल रहे थे, बहुत फास्ट पिच है उसमें, वो क्या बैटिंग उसने, और 280 प्लस को उसको चेस करना इज नॉट ए इजी थिंग। बट और हम कितने आराम से, आई थिंक 280 मतलब 4 या 5 ओवर पहले हम जीत गए थे वो, राइट, एग्जैक्टली। एंड ही नेवर प्लेड फॉर 100। आई मीन लोग उसको, आई थिंक अगर कुछ क्रिटिसिज्म अगर करना है तो लोगों के पास सिर्फ 2 क्रिटिसिज्म है मेरे हिसाब से। नंबर 1, अपने लिए खेला, रिकॉर्ड्स के लिए खेला। नंबर 2, उसने कभी इंडिया को किसी की मैचेस में नहीं जितवाया, और ये फैक्चुअली दोनों ही चीजें गलत हैं। क्योंकि जितनी बार सचिन 90 पे आउट हुआ है, इंडिया में कोई और दूसरा प्लेयर आउट नहीं हुआ। तो अगर वो रिकॉर्ड के लिए खेलता तो वो जो भी मैंने अभी सेंचुरी और सियाना होके खेलता, राइट, वो अपने और सियाना होके खेलता, रिकॉर्ड के लिए खेलने के लिए भी ना आउट नहीं होना चाहिए, राइट। अरे भैया, वो तो रन बना रहा है, वो भी तो इंडिया के लिए बना रहा है ना। नहीं, अगर रिकॉर्ड के लिए खेल रहा है, तुम्हें किसी ने मना किया, तुम टिक के दिखाओ ना पिच पे, तुम भी 90 पड़ेगा ना। तुम भी 28 बार 90 पे आउट हुआ है, राइट। आप सोचिए ये शतक और कितने होते हैं, जिसमें सचिन की पीठ में बहुत दर्द था, और उसने 137 बनाया चेन्नई में। हाँ, और जब सचिन आउट हो गया 137 बना के, तो 16 रन बचे थे, और इंडिया नहीं बना पाया था, 12 रन से हार गई इंडिया, राइट, 11 रन से हार गई थी। मतलब आप सोचो उसको कैसा लगता होगा यार। We were 40 for 5, we were 40 for 5, I still remember that, मतलब 40 से पहले ही 5 हो गए होंगे, 45 तक स्कोर मुझे याद है। उसके बाद नयन मोंगिया के साथ, और पता नहीं उस दिन नयन मोंगिया कैसे इतनी देर खड़ा रहा उसके साथ। वो 136 रन जो सचिन ने बनाए, वो बैक पे उसने पता नहीं क्या क्या, उसने पूरी बैंडेज बेल्ट बांधी है, और पता नहीं क्या, बैट ऊपर से हैवी है, पैड्स हैं, पूरी किट पहनी हुई है, एंड स्टिल ऊपर से बॉलर वक्रम आ रहा है, कभी वकार आ रहा है, ठीक है, और वो तुम्हारे को इंटिमिडेट कर रहे हैं यार आके सामने से। वो पता है 40 पे 5 है, दे आर राइट ऑन टॉप ऑफ यू, हर समय तुम्हें कुछ ना कुछ बोल भी रहे होंगे, और वो खड़ा हुआ है, लगा हुआ है। क्या लगता है चेज करना? आज जीते पड़े हैं यार, हम जीते पड़े हैं, लेकिन इतनी दूर वो मैच को ले गया। पाकिस्तान एक बार सोच रहा होगा यार, ये कहाँ आ गए हम, कहाँ, कौन है ये, मतलब ये हर बार क्या करता है हमारे साथ। वो मैच जब हम लोग हारे थे तो मैं रो रहा था, ज्यादा लोगों ने जो है ब्लेम उसमें भी तेंदुलकर पे ही दिया था कि अरे यार 16 रन आउट हो गया। इंडिया का 100 रन के ऑल आउट करते ना, वो मैच झेल लेता ना पाए। और उसमें से जवगल श्रीनाथ का कमेंट मेरे को आज भी याद है, वो शक्लेन मुश्ताक की बॉल पे बोल्ड हो गया था, तो जवगल श्रीनाथ ने कमेंट दिया था, ऑल्दो मतलब जवगल श्रीनाथ हैज आल्सो डन वंडर्स फॉर इंडिया, लेकिन उसने कमेंट दिया था, ये तो ऑफ स्पिनर था, मुझे क्या पता था इसकी बॉल सीधे आ जाएगी। तो ये उस जिस बॉल पे वो बोल्ड हुए थे, उस बॉल पे उसने कमेंट दिया था, और इंडिया 11 रन से मैच हार गई थी। बहुत सारे लोग जो है उस दिन, मतलब बहुतों का मूड खराब था, बट ब्लेम कि वो जिता नहीं पाया। हाँ, और एक और मैच था, मतलब ऐसे लाइक ऐसा कितनी इसकी मेमोरीज है इंडिया में या बाहर। एक चेन्नई में ही टेस्ट मैच था हमारा, आफ्टर द बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट वर्सेस इंग्लैंड के खिलाफ 2008 फाइनल डे में वी हैड ओवर 300 टू चेज। मतलब नॉर्मली इंडिया में ऐसा होता नहीं है, एंड दे वॉन द मैच वेरी इजीली। और फिर उसमें सचिन का पोस्ट मैच इंटरव्यू है, एंड द फर्स्ट थिंग ही सेड दैट कि ये जो है इट इज डेडिकेटेड कि हम ये जीत पाए क्योंकि सहवाग गेव अस अ ब्रिलियंट स्टार्ट, एंड सेकंड दिस विक्ट्री इज डेडिकेटेड टू जो मुंबई में हुआ उसके लिए। सो he was always, I think, playing for the nation, and that is why we rightly regard him as a god of cricket.
right? And don't forget that he was the only person, like he was the first person to score 200. Absolutely, on the in planet. ODIs, Yes. Internationally, he was the उसी ने first. स्टार्ट किया 200. उसने 200 दिखाया not कि out. 200 कैसे मारते हैं ODIs में. बिल्कुल, कैसे मारते हैं, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं. और ये भी क्रिटिसिज्म गलत है कि वो मैच नहीं जिता पाया. आप उसको चाहे शारजा को देख लें, चाहे जो भी हमारी 90s में अचीवमेंट्स रहे वो देख लें, चाहे आप कॉमनवेल्थ सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया में जो MSD के अंडर हम जीते थे कैप्टनसी में वो देख लें. यू लुक एट एनी सीरीज, आई मीन वो एंड अगर फाइनल में भी इंडिया पहुंच रही है 2011 के वर्ल्ड कप में, तो who's the leading run getter for India? तो वो आपको ही इज कैरिंग यू ऑल द वे ऑन हिज शोल्डर एंड यू कैन नॉट क्रिटिसाइज हिम कि यार ये हमें फाइनल्स नहीं जितवाता है. तो उसको सिर्फ फाइनल में लेके आना चाहिए, मतलब खिलाने के लिए. अच्छा भाई लोग, अभी अभिषेक पुरोहित कुछ अपने विचार नेगेटिव टिप्पणी करना चाहेंगे कुछ? नहीं, मैं एक्चुअली मैं इतना मग्न हो गया था ना कि इतने सारे लोग आकर इतना अच्छा बोल रहे हैं, और एक्चुअली में इतना खुश फील कर रहे हैं जब एक बंदा दूसरे बंदे की, मतलब सचिन की तारीफ कर रहा है, दादा का एकदम से ग्लो आ जा रहा है, सुशांत भाई तो हंसते ही जा रहे हैं जैसे कोई ना कोई बोलता जा रहा है, गगनदीप अलग मुस्कुरा रहा है. तो मैं वो देखते रह गया कि भाई इतने बड़े फैंस, इनके सामने क्या बोलूं. अब अभिषेक तुमको याद होगा जब बांग्लादेश के अगेंस्ट सचिन ने वो जो सेंचुरी मारा था, जो उसका 100 था, तो हम लोग सोनाटा में मैं और सौरभ नाच रहे थे ऊपर. करेक्ट. और एक और इंसिडेंट बताता हूँ कि ऐसी इन लोगों को चढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है. तो एक बार सुशांत और सौरभ ना साथ में मैच देख रहे थे, और सचिन खेल रहा था, ठीक है, टीवी पे. ये लोग हमें उठने नहीं दे रहे थे. तो हम लोगों ने जस्ट ऐसे ही, मैंने और संदीप ने क्या करा, नींबू लेकर आ गए, अगरबत्ती लेकर आ गए, और बोले कि आउट हो जा, और वो आउट हो गया. तो इन लोगों ने पिटा भी बहुत पिटे थे. छोड़ दिया. बहुत पिटे थे. दादा हम आपको एक और बहुत अच्छी चीज बताते हैं. मतलब पता नहीं आप लोग ने भी नोटिस की होगी, जो तेंदुलकर का आखिरी मैच था, जब तेंदुलकर आउट हुआ 74 बना के. मतलब आज का जो क्रिकेटिंग एरा है उसमें, मतलब मैं विराट को मानता हूं कि भाई वो बहुत बहुत बढ़िया बैट्समैन है, और उसे टेम्पलेट बना के रिकॉर्ड करके दिखाना चाहिए इंडियन क्रिकेट टीम को कि ऐसे जो है चेस करते टाइम मैच जिताते हैं. इतना बढ़िया मेरे को मोमेंट लगता है कि वो तेंदुलकर जो है पवेलियन से बाहर आ रहा है, और विराट कोहली जो है पवेलियन के अंदर जा रहा है. जब तेंदुलकर आउट हुआ था अपने लास्ट मैच में, तो विराट कोहली एंटर किया था, और उसने एंटर करके पहली बॉल पे कवर ड्राइव 4 मारा था. तो मतलब एक एरा खत्म और दूसरा एरा शुरू. ये मैंने नोटिस नहीं किया. अमेजिंग, इट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. अमेजिंग ऑब्जर्वेशन. अच्छा चलो मैं रिवाइंड करके देखूंगा वो. मतलब YouTube आज का टास्क है ये, मतलब अगर ऐसा है तो आई थिंक वो बहुत बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है. एग्जैक्टली, एंड ऑफ वन एरा एंड द स्टार्ट ऑफ अनदर एरा. राइट. और रादर आप ये बोलो कि उसका मतलब इट जस्ट उसका अक्स ही है, मतलब विराट कोहली. तो ही ग्रू अप वाचिंग. विराट कोहली भी क्रिकेट he has his own style. विराट कोहली भी तो कहता है कि उसने खेलना शुरू किया तेंदुलकर की वजह से. अब ने खेलना शुरू किया तेंदुलकर की वजह से, किसने मैंने गलत उसकी वजह से. जो ये पूरा, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो BCCI सबसे रिच है ना इस टाइम, ये तेंदुलकर की वजह से. बिल्कुल. एक एग्जांपल है, हमने नेदरलैंड्स में कभी क्रिकेट नहीं होता था पहले. नाउ वी हैव अ टीम फ्रॉम नेदरलैंड्स, ठीक है. तो पहले एक सीरीज हुआ था, इंडिया वर्सेस, इट वाज नॉट नेदरलैंड्स, आई डोंट रिमेंबर. तो नेदरलैंड में क्रिकेट वाज नॉट अ पॉपुलर गेम एट दैट टाइम. लेकिन क्या हुआ कि जब ये कोई एक रिपोर्टर जाके स्ट्रीट में जाके पूछा किसी से कि डू यू नो अबाउट दिस गेम कॉल्ड क्रिकेट. तो एक बंदा बोलता है, नो आई डोंट नो अबाउट दिस गेम कॉल्ड क्रिकेट, बट आई नो देयर इज अ गाय कॉल्ड तेंदुलकर who plays cricket. Right. There are a lot of sayings about Tendulkar. If Sachin scores, India sleeps well, right? So that's मैथ्यू एडन की एक कोट है कि I have seen God. He bats at number 4 in Test cricket for India. Yeah. There are a lot of sayings. For men, there are two type of player in international cricket. One is Tendulkar, rest are others. So you
ये एक और था कि किसी कैप्टन को किसी ने पूछा था कि आप यूजुअली एक मैच से पहले हाउ डू यू प्लान फॉर तेंदुलकर, कि व्हाट इज द स्ट्रेटजी यू नो दैट यू गाइस कम अप विद टू गेट हिज विकेट। बोलता नहीं भैया, वी डोंट प्लान फॉर तेंदुलकर, वी प्लान फॉर द अदर 10 फॉर द रेस्ट। राइट, उनको आउट कर लोगे तो ये लास्ट में बैटिंग नहीं कर पाएगा बस। राइट, तो he had great respect actually। और आप ये देखो ना कि he had this great respect from every other team। He commanded that, right? He earned it. He earned it, yeah, right. He commanded it। ये तो जब इंग्लैंड में बैटिंग करने जाता था तो सारे ऑडियंस मतलब स्पेक्टेटर सारे उठ के क्लैप बजाते थे। ऑस्ट्रेलिया में जाता था तो जब 2007 या 8 में ऑस्ट्रेलिया टूर हुआ था, 4 के बाद कब हुआ था, तो एवरीबॉडी तभी था 7-8 वाला, राइट 7-8 वाला जब इंडिया ओडीआई जीती थी, 2007 और 2008। तो एवरीबॉडी थॉट दैट वुड बी हिज लास्ट टूर टू ऑस्ट्रेलिया। तो सब बंदे के जब 0 भी मारता था तो ऐसे ताली बजाता था। He deserved it, right? Means अगर ऑस्ट्रेलिया में आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है ना तो यू मतलब आपने कमा लिया जीवन में, हो गया। ऑस्ट्रेलियंस एंड आई थिंक इंग्लिश इंग्लैंड इनके जो स्पेक्टेटर्स हैं और इंडिया के, दे नो अबाउट क्रिकेट इनसाइड आउट। तो अगर यहाँ पे आपको प्यार मिल रहा है, दैट मींस यू हैव रियली डन समथिंग इन द गेम। इंडिया में तो उसको भगवान ही मानते हैं, इंडिया का तो। और आप ये देखिए उसने उस कॉमनवेल्थ सीरीज जो इंडिया जीता था धोनी की कप्तानी में, उससे पहले उसमें भी सेंचुरी, उसमें सेंचुरी थी, लेकिन उससे पहले उसकी कोई वनडे में शतक नहीं था ऑस्ट्रेलिया में। एक 91 बनाया था उसी सीरीज में, एक में उसने शतक मारा, सेंचुरी बना दी थी इन वन ऑफ द फाइनल्स व्हाइल चेजिंग। राइट। तो आप ये देखिए कि वो उसके जीवन का वहां पे फैग एंड आ गया है, जहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया शायद दोबारा टूर करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन उस समय एक वनडे में शतक जड़ दिया उसने। और वो उसको कितनी रिस्पेक्ट उस दिन मिली थी, ये आप सब देख सकते हैं वो जाके रिकॉर्डिंग फिर से। तो ये उसकी ही कमांडेड इट, वो उसके था ही। यार जब सर डॉन ब्रैडमैन ने बोल दिया कि भाई इस बंदे में मेरे को मैं दिखाई देता हूँ, अपना अक्स नजर आता है, राइट, हाँ मेरी तरह खेलता है, तो और क्या चाहिए। मैच से पहले सोता नहीं था। सौरव गांगुली वाज हिज रूम पार्टनर, तो आई थिंक ये आप सब लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। तो वो रात भर बैठ के बैट को पंच करके गेंद को लटका के कुछ पंच करता रहेगा, ठीक है। उसमें एंजाइटी रहती थी, उसमें ईगरनेस रहती थी, गेम शुरू हो, खेलूं करूं, उसमें वो बच्चा था, उसने अंत तक 24 साल उसमें खेला। अगर शायद पता नहीं आपको पता हो ना हो कि सौरव गांगुली भी 92 में जब इंडिया टूर पे आई थी ऑस्ट्रेलिया, तब वो भी था, राइट, ही वाज सर्विंग ड्रिंक्स एट दैट टाइम, राइट। तब वो इसको देखता था सचिन की, भाई ये मेरे जैसे ही लौंडा है जरा सा, ये खेले जा रहा है, मैं उसको पानी पिला रहा हूँ। आप देखो उसके बाद भी 4 साल लग गए थे गांगुली को मेन स्ट्रीम में प्लेइंग 11 में आने के लिए, द्रविड़ को, दोनों को 4 साल लग गए थे। द्रविड़ और गांगुली ने एक ही साथ अपना डेब्यू किया था, एक ने शतक मार दिया था, एक 95 पे आउट हो गया था। तो आप ये देखिए कि उसके भी 4 साल बाद लग गए। और एक वो चाइल्ड प्रोडिजी, वो था ही चाइल्ड प्रोडिजी, इसमें कोई शक नहीं है। सम पीपल आर डेस्टाइन्ड टू बी ग्रेट। तो मैं आज भी वो डे 1 से ही वो लेजेंड बन चुका था, डे 1 से ही बता रहा हूँ। आप ये देखिए, आप शायद आप सभी ने सुना होगा, जैसे नवजोत सिद्धू बहुत प्रेज करता है सचिन की, जब वो करने पे आता है तो वो बह जाता है वो, उसके भाई उसके जैसा, मतलब वो 89 में वहां वो उनको खेल रहा है जिनके सामने खेलने में हमारे तो हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। मतलब हम वो ऐसा था कि अब जैसे बैटिंग में तो देयर इज नो डाउट। तो एक बार क्या हुआ, एक बहुत सिचुएशन खराब था एंड ऑल द स्पिनर्स आर गेटिंग बेल्टेड, ठीक है। तो एवरीबॉडी पूछ रहा था कौन डालेगा। एवरीबॉडी वाज लाइक ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन किसको दिया जाए। पीछे से एक सटल आवाज आता है, मैं डालेगा, व्हिच मींस तो ऐसा ही सीन वो बैटिंग के दौरान भी था। तो वो जब सचिन को गेंद लग गई थी वकार यूनिस की और वो ब्लड वाज गशिंग आउट ऑफ हिज नोज, ये नवजोत सिद्धू की वर्डिंग है, मेरी वर्डिंग नहीं है। तो उसने बोला कि उसके नाक से खून बह रहा है। और जो सामने से कौन उन दिनों हमारा फिजिशियन होता था, ईरानी करके कोई होता था, तो नवजोत सिद्धू की वर्डिंग थी कि इसके इलाज तो हमारी इंजरी से भी बदतर होते थे। His remedies were more, मतलब जिसे बोलते हैं ना, मैं उसका सब्जेक्ट, उसका पूरा लाइन भूल गया हूँ। नवजोत सिद्धू की अंग्रेजी बहुत अच्छी है हमसे। तो वो जो उसने बोला कि ये सामने से जब मैंने चलता देखा कि ये हमारे ट्रीटमेंट देने आ रहा है, तो कह रहा है इससे चलो चोट ही ठीक है, ये तो हमारी ट्रीटमेंट दे तो बेहतर है।
क्योंकि उसके पास एक ही ट्रीटमेंट होता था, चाहे कुछ भी हो जाए, सिर पे बर्फ रख देता था आकर के वो, ठीक है, सबके एक ही चीज का इलाज था उसके पास। और उसके बाद भी सचिन वाज सो ईगर टू प्ले, वी वर 57 for 4, पूरा दिन निकालना था टेस्ट में ड्रॉ करने के लिए, जीत तो बहुत दूर दूर की बात है। वो रवि शास्त्री आउट होकर के चला गया, और सिद्धू हैज हिज ओन स्टाइल टू डिस्क्राइब थिंग्स, राइट, वो दो चार चीजें जोड़ भी देता है जो उस समय नहीं भी होती थी, बट उसका तरीका इतना अच्छा मिर्च था मसाला। कि हाँ, वो उसका तरीका अच्छा, उसने जब बयान किया कि कुंबले शुम्बले उसके बाद आएंगे तो बस होगी बैटिंग खत्म, लेकिन कुंबले ने डेब्यू भी नहीं किया था उन दिनों। तो आप सोचिए कि उसका बयान करने का तरीका ये होता था कि उसको वो इंटरेस्ट पैदा करता, और सचिन के लिए वो बहुत ज्यादा क्रेजी है उसकी बैटिंग देखने, जो ओपन किया है उसके साथ, शतक मारे हैं उसके साथ, खेला है अच्छा, तो वो इतना मुतासिर रहता था उससे, उसको जब वो बयान करता है। और ये वहीं से चीजें चली कि कितनी चीजें हम उसके बारे में जानते हैं, कितना ये अपना लव क्रिएट कर देती है उसके लिए। मैं तो देखो, मेरे लिए तो क्रिकेट आज मैं देखता जरूर हूँ, लेकिन मुझे उसके जैसी वो हम्बलनेस, वो ह्यूमिलिटी मुझे मुझे नजर नहीं आती यार। वो ऑफ द फील्ड उसका कंडक्ट, ऑन द फील्ड उसका कंडक्ट, आज जो मैं देखता हूँ बहुत बड़ा प्लेयर है विराट कोहली, कोई यार शक ऑफ नहीं, द फील्ड भी वो, मतलब ही इज अ राइट, गुड हस्बैंड, ही इज अ गुड फादर, ही इसीलिए मैं इज अ उसको गुड बड़ा मानता सन। हूँ, इसीलिए मैं बड़ा मानता हूँ, राइट, मेरा इसीलिए तो इंडियंस, मतलब हम इंडियंस रिकॉर्ड्स वही तो तो देखते हैं। बनेंगे, राइट, रिकॉर्ड्स बनेंगे, टूट भी जाएंगे, सचिन को भी कोई रिकॉर्ड तोड़ जाएगा, विराट कोहली तोड़ देगा, पता कोई बड़ी बात नहीं, तोड़ देगा, लेकिन वो चीज कहां से लाओगे जो सचिन में थी, वो विराट कोहली में नहीं है, मुझे नहीं दिखती। मैं बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है विराट कोहली, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं जो हाँ चीज वो देखता हूँ, चीज जब नहीं से है। मैंने जो क्रिकेट देखी है ना, उन दिनों की मॉडर्न एरा की बॉलिंग, ऑब्वियसली उससे पहले यार विवियन विराट कोहली मेरे रिचर्ड्स को थे। उस पे पॉन्टिंग की लाइन पे जाता हुआ लगता है। अब वो वही वही मैं मतलब कह रहा हूँ, मैं खेल के बारे में उसके कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो उसके जैसे एंटिक्स हैं, जो हाँ, उसका मैनरिज्म है ना, वो मुझे मतलब लगता पॉन्टिंग है। भी उसके उसी के एरा का है, लेकिन हम पॉन्टिंग को, वो बहुत सही प्लेयर था, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही लेकिन फाइटर था वो, लेकिन राइट, हम ये उसको ग्रेटनेस आइडलाइज नहीं अचीव कर करना सकते। बहुत मुश्किल है, ये जो सचिन ने किया ना। आप देखिए उससे पहले कितना बड़ा प्लेयर रहा है विवियन रिचर्ड्स, उससे पहले कितना बड़ा प्लेयर रहा है डॉन ब्रैडमैन, कितना बड़ा नाम था। विवियन रिचर्ड्स ने कितने शतक मारे हैं, ऐसे वनडे में 180-83 रन कभी हाईएस्ट होता था उस आदमी का, ठीक Exactly. है। वो आप देखिए, उससे लोग, मतलब उस एरा में लोग हेलमेट नहीं पहनते थे। आप गवास्कर को देख लीजिए, वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के सामने ऐसे खड़ा हुआ है 71 में। 71 में 600-700 रन एक सीरीज में मार दिए उसने, उन बॉलर्स के सामने को हम देख नहीं सकते गेंदबाजी करते हुए। जबकि इतना तो छोटा सा 5 फुट का तो आदमी पांच बिना को हेलमेट वही के। सेम सेम हाइट, सचिन और गवास्कर की सेम हाइट है, 1-2 इंच का फर्क होगा आपस में, इससे ज्यादा तो नहीं है। आप देखिए वो भी ग्रेट था ये, लेकिन जो सचिन को ग्रेट बनाती है ना, उससे भी ज्यादा वो ये कि वो दौर एक ऐसा था जिसमें लोगों ने क्रिकेट को, इसने खुद इतना बड़ा बना दिया था अपने बल्लेबाजी से राइट, कि टीवी एक मीडियम हो सकता है, शायद नहीं था 70 के दशक में। लोग, मेरे पिताजी बताते हैं कि वो रेडियो पे कमेंट्री सुना करते थे उन दिनों, वेस्ट इंडीज से कमेंट्री आया करती थी, कितने लोग सुनते होंगे जिनको इंटरेस्ट था वही। लेकिन यस, टीवी ने एक माध्यम दिया हमें सचिन जैसे खिलाड़ी को देखने का, लेकिन जिस बदतर दौर से हम गुजर रहे थे, वो वो शायद खत्म ही हो जाती अगर सचिन नहीं होता था, वो दौर ही और मैं शायद। हमेशा बोलता हूँ लगता भाई, ये है जो आईपीएल वाईपीएल जितना भी सब चल रहा है ना, ये सब सचिन की वजह उसी की से। देन है। सचिन की देन है, राइट। क्रिकेट को एक ललित दूसरे मोदी ने लेवल पैसा पे लेके कमाने का गया। तरीका और बता दिया, लेकिन वो सचिन की वजह से ही था। एमआरएफ को, जो एमआरएफ बनाया ना, वो सचिन ने बनाया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, या बहुत सिंपल सी बात है, गॉड का काम क्या होता है? टू गिव लाइफ। सचिन गिव राइट लाइफ टू क्रिकेट इन इंडिया, so he is rightly राइट considered as a god. That's what राइट we can say. राइट, वो बहुत ऊपर का खिलाड़ी है, बहुत ऊपर का Exactly. प्लेयर है, बहुत ऊपर का ह्यूमन बीइंग लगता है मुझे वो। अपनी हाँ, पर्सनल लाइफ हर बंदे की होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने कभी शायद कोई गलती ना कमिट की हो, वो की होगी, लेकिन मेरे को तो ऐसा ही दिखता है कि वो आदमी ना इतने साल खेलना, 25 साल का करियर, मतलब मैं उसके अगर राइट इनिशियल ईयर्स भी जोड़ लो, 22 साल 23 साल उसने ऑन फील्ड इंटरनेशनल भाई। क्रिकेट खेली है, 200 उससे टेस्ट, पहले भी खेले हुए 200 200 टेस्ट टेस्ट। में, मतलब आप देखिए 200 × 5 आप जोड़ लीजिए, तो आपके उतने दिन तो वहां बीते, उसके भाई बाद तेरे को आपके पता कितने है, टूर्स 50 हैं, टेस्ट मैच खेलने वाला बहुत बड़ा आदमी माना जाता बड़ा है। प्लेयर हो जाता है भाई, बहुत बड़ा प्लेयर हो जाता है, आपको याद करने लग जाते हैं लोग। तो 200 टेस्ट मैच तो मतलब अपने आप में एक इतना बड़ा अचीवमेंट है कि मतलब इट कैन नेवर बी फेट ऑन, आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो, वो बहुत बड़ा अपने आप में, मतलब मैं इसकी तारीफ में, हम कितना भी कुछ कहते रहे बहुत कम है, वो इतना बड़ा जीनियस है कि हम नहीं शायद अपने शब्दों में बयान कर सकते। मैं तो नहीं, तो अभिषेक, आई सपोज अभिषेक अब आपका कुछ इस बारे में उसके कोई डाउट क्लियर हो डिसएग्रीमेंट गए तो होंगे। बचा कोई नहीं है। डाउट नहीं, आप? मेरे को एक्चुअली में तुम लोग बात करते हुए देख रहे थे, वो भी बहुत अच्छा लगा था, बट हाँ मेरे पास एक्चुअली में 2-3 कंट्रोवर्सी टॉपिक्स हैं जो सचिन के ऊपर है। ब्रिंग हाँ इट बताओ ऑन। बताओ। हाँ, Bring it on. एक टॉपिक है विच इज कॉल्ड मंकी गेट।
करेक्ट, हम्म, जिसमें that वाओ, was एंड्रू रिसर्च साइमंड्स करके के आया लड़का। एंड्रू साइमंड्स और हरभजन में लड़ाई हो गई लड़ाई हो थी, जाती, करेक्ट। राइट हाँ, राइट, और उसमें वो उसको मंकी वंकी बोल मंकी देता है, वो, बट करेक्ट, बट शुरू में सचिन एक्चुअली में बोलता है कि मैंने कुछ सुना नहीं था, और बाद में बोलता है कि एक्चुअली में मैंने सुना था। तो उस टॉपिक पे मतलब बिकॉज उसने बहुत ज्यादा स्टैंड चेंज देखिए कर दिया। देखिए पहली बात तो इस पे मैं ये कहूंगा, हम में से वहां कोई नहीं था ना, हम में से तो वहां कोई नहीं था ना। मैं बीइंग एन इंडियन, हमने भी नहीं मैं सुना था। हमने भी नहीं, हमने तो मतलब हमें तो वही चीज सुनाई देती है जो स्टम्प्स के पास हो रही है, और वहां भी अगर वो सब नहीं गगन, स्टम्प माइक्स बीइंग एन वगैरह इंडियन, हैं। अनबायस्ड व्यू मैं बताओ मैं अपना। दोनों चीजें कहूंगा, मैं दोनों चीजें कहूंगा। मेरे को नहीं पता कि पुरोहित ने कब सुना कि उसने अपना स्टांस चेंज किया है। मैंने तो एक बार भी कहीं स्टेटमेंट नहीं सुनी ऐसी, पहली नहीं बात। सुना, मैंने भी नहीं सुना। मैंने नहीं मैंने सुना भी कि नहीं उसने सुना। अपना स्टांस नहीं चेंज किया सुना। हो। वो फर्स्ट नहीं, डे से ही उसने ये बोला, जब भी जैसे ही वो इंसिडेंट हुआ, कि मैंने ये सुना ही नहीं कि और वहां पे कोच हरभजन ने उसे में बोला है। हाँ, उसका ओपिनियन सबसे ज्यादा मैटर करने वाला था। ऑब्वियसली अगर उसने जो बोल दिया वही मानने वाले थे वो दी लोग। सचिन तेंदुलकर, मतलब अच्छा, हाँ, ओके, वो सचिन। गलत हो ही नहीं सकता है, ये बात समझ लीजिए आप। वो नहीं करता है ऐसा काम। अरे एक चीज बताता हूँ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके। अभी 2015 वर्ल्ड कप था, सचिन जी तो रिटायर हो गए थे, तो जो उनका भक्त है वो जो हर उसमें आता है, सुधीर, पेंट वेंट हाँ, लगा के, गौतम, सुधीर गौतम। उसको ना यहाँ पे एयरपोर्ट पे पकड़ लिया। वो पेंट वेंट डब्बा में भर के ले आ रहा था वो, तो उसको पकड़ लिया कि भाई ये क्या है, और फाइन वाइन मांग रहे उसे, एंट्री नहीं दे रहे उसको। तो हाँ, उसने कहा कि मैं सचिन का फैन हूँ। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा भाई सचिन के तो सारे इंडियन ही फैन है, हम क्या करें, ये क्या हाँ, मतलब है सचिन का फैन हूँ। तो भाई उसने उसको लेटर दिखाया सचिन का, तब भी नहीं माने वो। हाँ, फिर हाँ, उसके पास नंबर भी सचिन ने, उसने कहा मैं बात कराता हूँ तुम्हारी। अरे हैं, सचिन से बात सचिन से बात कराएगा, कराएगा तो राइट, ये कैसा फैन है। ये राइट तो राइट। भाई नहीं सचिन से बात सचिन, कराई, और राइट, उसने अपने मैनेजर को बोला, सचिन ने, जो ऑस्ट्रेलिया में कोई मैनेजर था उसका, ऐसे समझाओ हाँ, पुलिस वालों फिर उसको रफा दफा करवाया। को। नहीं देखिए आप, ये सुधीर के लिए कितनी बड़ी बात है, उसके जीवन की हाँ कितनी बड़ी चीज होगी ये कि हाँ, उसने पूरा अपना जीवन ही उस पे समर्पित कर दिया। राइट, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो आगे मैच देख रहा है यार। उसका अपना रंग लगा लिया सिर पे, हाँ इंडिया का मैप बना लिया, रंग कर लिया, हाँ, तिरंगा अपने मुंह पे बना लिया। वो क्या कम बात है, किसी पागलपन से कम होती है क्या ये चीजें? आप सोचिए, इतना बड़ा वो देशभक्त भी है, वो सचिन भक्त भी है, वो सब चीज है। आप कहाँ देखते हो सबसे ज्यादा देशभक्ति? मेरे ख्याल से क्रिकेट ग्राउंड्स पे या फिर जंगों में यही होती है, या जो भी खेल के मैदान होते हैं वहीं दिखती है। और जब वाघा खास बॉर्डर तौर पे। पे वाघा बॉर्डर पे, बिल्कुल बिल्कुल वही बॉर्डर्स पे, जंगों में जहाँ भी ओके, ये- सो एक और कंट्रोवर्सी है मेरे पास, 2-3 और है। हम्म, पाकिस्तान मुल्तान में मैच हो रहा था 2004। डबल सेंचुरी नहीं करने दी। हाँ, 194 झूठ डबल है, सेंचुरी नहीं करी, नाराज और हो गए सचिन। हाँ, बहुत सचिन गुस्सा नाराज था, हो गए थे। बहुत ये झूठ गुस्सा है ये सब। नहीं ये तो तो एक्चुअली झूठ है, हाँ। नहीं इसका एक्चुअली तो में उन्होंने बेकार की बात है। ये दिस नहीं, वाज अगेन राहुल द्रविड़, और ये एक अवार्ड से, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, एक अवार्ड्स हुए थे बीसीसीआई के, उसमें राहुल, एंड दिस इज आफ्टर देयर रिटायरमेंट, तो उसमें राहुल द्रविड़ और सचिन और गांगुली वो तीनों ही बैठे हुए थे, एंड दे वर जस्ट हैविंग अ चिट चैट। तो एक जर्नलिस्ट ने भी पूछा कि वो वाज ही एंग्री, बिकॉज ऑब्वियसली जो उसका एक्सप्रेशन था कि आपने 194 पे डिक्लेयर कर दिया, ही वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड विद दैट, बिकॉज why wouldn't anyone want to score a double hundred in Pakistan, right? It's everyone's, I With think just they 6 men again, short, right? right? और हम वो टेस्ट मैच बहुत आराम से जीत गए थे, बहुत टाइम पहले जीत गए थे। तो फिर देन वो द्रविड़ मुझे सेड समझ नहीं आया उसने क्यों कि किया ऐसा। उसने he didn't say anything in the dressing room। तो लेकिन it is, मैं उसमें द्रविड़ के अगेंस्ट हूँ, उसको ऐसा नहीं करना वो चाहिए था। आपका एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है उस पे, वो मेरा हो सकता है किसी का कि क्यों नहीं करने दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको कंट्रोवर्सी ने जन्म दिया है। वो कंट्रोवर्सी को जन्म देने हाँ नहीं, वाले मीडिया कंट्रोवर्सी, वाले हो सकते हैं। क्योंकि वो मसाला वो होता दोनों है ही वो। बंदे ऐसे हाँ, हैं, वो द्रविड़ राइट, और सचिन। गांगुली, द्रविड़, सचिन, ये हाँ, बहुत, ये आपस में ये क्या मतलब, बंदे, आपको लग रहा है कि लक्ष्मण, ये, हाँ हाँ, कंट्रोवर्सी को ये आगे रिकॉर्ड भटकने से नहीं राइट देते ऊपर थे ये है। लोग। राइट राइट, ये लोग जो है ना इन चीजों से ऊपर है, मुझे को यही लगता है हरभजन और युवराज रिकॉर्ड्स। होते तो पता नहीं कहाँ पहुंच लड़ चुका। पड़ते हाँ, हैं। तो वो आपस में लड़ जाते वहीं, तो वो रोहित अलग भाई चीज तुम्हारी है। नहीं कोई कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी नहीं है आज यार, हाँ आज वाला ओके, टॉपिक कंट्रोवर्शियल हो ही नहीं सकता है। ओके, सही बात। नहीं मेरे पास यही तो और भी था टॉपिक्स हैं। कि मैंने इसको बोला था, मैंने कहा भाई जिन लोगों को तू बुला है ना, उन्होंने सचिन को घोट के पी रखा है, ठीक है। देखो, ये ऐसा है कि सचिन जो ग्रेट है उसमें दो तीन और चीजें, एक तो है कि उसका नॉन कंट्रोवर्शियल करियर जिसमें एक भी कंट्रोवर्सी नहीं था, और ये जो मंकी गेट वाला था, देयर इज नो रीजन व्हाई हरभजन विल कॉल
एंड्रू साइमन अ मंकी, क्यों, क्या मतलब व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? उसको यार मंकी उसने बोला गाली होगा। दी थी उसने हिंदी में, आप मेरे को एक बात माँ की गाली बताओ, दी थी। मैं कह रहा हूँ मंकी भी बोला है, अगर बोला है तो ये उनके बीच की बात है, ये उनके बीच की बात है। वहां पे 25 बातें होती है जो हमें नहीं सुनाई देती। नहीं दादा, किसी ने आप जो मंकी बोल रहे हो बोला ना, या माँ की बोला, आप जो बोल रहे हो ना, तेरी दादा, बात बहुत की, ही ज्यादा रेसिस्ट साइमन ने कमेंट छोड़ है। दिया होगा क्या? साइमन ने भी बोला होगा कुछ ना कुछ। यही तो मैं कह रहा हूँ, उसने आपस के बीच की बात है, तभी तो कुछ लड़ाई बोला हुई हो। थी उनकी, तभी तो लड़ाई हुई थी। आप और मेरे को एक दादा चीज बताइए, आप मेरे को एक चीज बताइए, उसके बाद वही दोनों प्लेयर्स मुंबई इंडियंस के लिए 2-4 साल 5 साल खेले भी हैं, दोनों ही। एंड्रू हाँ, साइमंड भी वो मुंबई इंडियंस के लिए अपनी खेला है अपनी और रजन तो 10 साल खेला है, ठीक है। तो ये आपस में क्या बातचीत नहीं की होगी क्या? 2008 से ऊपर नहीं उठे होंगे? हरभजन का तो वैसे ही बहुत कंट्रोवर्शियल करियर रहा है, उसने तो 2-4 लोगों को चपेटे मारी हुई हैं। यार वो जब वो सीक्रेट सा पतला था ना, वो रिकी हाँ, पॉन्टिंग से भिड़ गया था वो हाँ, वो बताओ उसको, पहले मैच में रिकी ही। पॉन्टिंग चिढ़ता था उससे कि भैया ये हर बार आउट कर रहा है मुझे, अब ये वो शारजा में चिपक यार वो गया, उसको चिड़-चिड़ में शारजा आउट में हो आउट जाता था, गया। पता है? हाँ, वो चिड़-चिड़ में, जबकि उसके लिए हरभजन को खेलना मेरे ख्याल से कोई बड़ा गेम नहीं होना चाहिए था। वो जस्ट ये था कि इंटिमिडेटेड था उससे वो, कि हाँ, नहीं राइट। मैं वो इंटिमिडेटेड हो, किसी के स्किल में घुस जाते हो तो आप घुस जाते हो। अब ग्रेम स्मिथ और देख लो, रिकी कोई आउट नहीं कर रहा, पॉन्टिंग जहीर खान आउट कर रहा है उसे। रिकी पॉन्टिंग और साइमन जो सीरीज में इसलिए भी खार खाते थे हरभजन से, कि हरभजन ने वो सिंगल हैंडेडली बॉलर्स की तरफ से जो है वो सीरीज जिताई थी इंडिया को, मेरे हिसाब से। हाँ, तो वो सीरीज हरभजन ने सिंगल हैंडेडली जिताई थी बॉलिंग करके, और रिकी पॉन्टिंग आते थे, 10 रन बना नहीं पाते थे, लपक लेता था उनको, चप लेता था। यार रिकी पॉन्टिंग का तो वो बनी था, वो इंडिया में तो राइट, बहुत ही रिकॉर्ड खराब है बहुत रिकी बुरा, पॉन्टिंग। राइट। वो बहुत ही बुरा। आएगा 7 बॉल 6-7 बॉल खेलेगा, आएगा चले जाएगा। और वो हाँ, जाएगा, हरभजन को लगा दो बस। राइट, वो वही है। एक इंटिमिडेटेड हो जाती है उसका कोई वो नहीं है यार, उसका मेरे ख्याल में हर एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक मिलेगा ही नहीं तुम्हें भाई। मैं देता हूँ, मैं और लेकर आता हूँ। तो हाँ, एक बंदे ने बोला था, सचिन, which is actually a quote, correct? Sachin should be questioned, he knows everything. This was said in Rashish Latif's interview, जिसमें वो मैच, किस कॉन्टेक्स्ट में है ये? किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो आप? कोई मैच फिक्सिंग का हुआ था। तो जब मोहम्मद अजरुद्दीन और अजय जडेजा जब पूरे स्कैंडल में फंस गए थे, करेक्ट, तो उस समय सचिन बिल्कुल शांत रहा था, ठीक है। उसके बाद एक इंटरव्यू आया था, बहुत लेट आया था, 2000 के करीब में, तो उसमें रशीश लतीफ ये बोलता है कि सचिन शुड बी क्वेश्चन, ओके, ही नोज एवरीथिंग। सो एक ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि मेरे को इस पे एक ही लाइन का जवाब लतीफ कौन है? नहीं, एग्जैक्टली हु इज राशिद लतीफ यार? अ टेंटेड क्रिकेटर हु वाज इन्वॉल्वड इन मैच फिक्सिंग। तो ये वही है ना जो हम क्या करें, हमारे लड़के अच्छा नहीं खेले, ये वही है ना। वही ऐसे आदमी से ये मैं तो कहूंगा YouTube खोल के बैठे हैं आजकल वो। हाँ, वो आजकल शोएब अख्तर के साथ YouTube चैनल पे आते हैं और इंडिया की वाहवाही करते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी जो उधर बैठे हैं। सारे ऊपर से राशिद लतीफ को ले आ रहे हो यार, वो वैसे ही कुछ बोलते हैं, हम लोग वैसे ही मारते हैं उसको, जो है उसको शेड्यूल कर। नहीं, मैं तेरे को बताऊं पुरोहित, मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट किसी समझदार आदमी से आया होता ना तो ठीक था। मेरे को लगता है अगर सचिन को पता भी है तो वो वहां पर बोलेगा जहां उसे जरूरत है। हाँ, वही देखो, उसे जहां उसे बुलाया जाएगा वहां बोलेगा वो, तुम्हें मुझे क्यों सफाई देगा वो। शोएब अख्तर से निकालो, यूनुस खान से निकालो, नहीं करेगा वो ऐसा। बट उसी टॉपिक पे हमेशा ये बोला जाता है कि जब भी मैच फिक्सिंग रहा, एक कॉल आ रहा है, लेना जरूरी है कि सचिन हमेशा, हाँ प्लीज, तो सचिन हमेशा शांत बैठा रहा, ठीक है, और कभी उसने किसी के कुछ बोला नहीं। एंड देन जब आईपीएल की भी स्पॉट फिक्सिंग हो रही थी तब भी सचिन शांत बैठा रहा, उसने कभी कुछ बोला ही नहीं। वो मतलब उसको जबकि बोलना चाहिए था उसने कभी आगे उठ के बोला नहीं, बिकॉज ही इज कंसिडर्ड द गॉड। पुरोहित ये सब ना परसेप्शंस है भाई, नोबडी नोज द फुल स्टोरी। सचिन क्या बोला, सचिन क्यों नहीं बोला, मतलब क्या स्पॉट फिक्सिंग, चलो हमने मान लिया आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग होती है थोड़ी बहुत। अगर 1000 प्लेयर खेल रहे हैं आईपीएल में तो सारे के सारे नहीं जानते हैं। और किसको बोला, who knows कि ये जो पूरा जो मैच फिक्सिंग का जो पर्सनल, मतलब लोगों को पता है कि सचिन ऐसा नहीं करेगा, लोग जाएंगे नहीं उसके पास। ये 2000 में मैच फिक्सिंग का सामने आया था, राइट? उसमें हेंसी क्रोनिये वाज कन्विक्टेड, अपना भी, हमारा भी 3-4 प्लेयर थे जिनका नाम जॉय नहीं बोला, हम नहीं लेंगे। तो व्हाट, हाउ डू वी नो कि बिहाइंड द सीन ड्रेसिंग रूम में कुछ नहीं हो रहा था, सचिन ने उसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया। maybe the whole thing is that it has come out because Sachin spoke up behind the scene. We never know, right? तो वो
ये सारी एक अनवेरिफाइबल स्टोरी हैं which are not coming from a source which are true or truthful. So इसमें हम we cannot really believe on them. जो भी टॉपिक तुमने उठाए ना, these are only speculations. Right. Exactly. Documented, nowhere proven about Sachin Tendulkar. Okay, ये चलो मीडिया के ट्रायल्स अच्छा, हैं. We can't go. एक चलो, नेगेटिव चलो, पॉइंट मेरे पास है हाँ सचिन पाजी का, कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस ज्वाइन करी, राज्यसभा मेंबर बने। हाँ राज्यसभा मेंबर बने, और उसने उनका वो भी हुआ था, काफी इस पे खिंचाई भी हुई थी उस पे Criticism कि हुआ था. हाँ कि वो उन्होंने एक भी उनकी अटेंडेंस नहीं थी उसमें पार्लियामेंट में, हुई थी ये बात एक भी। हाँ। और उन्होंने बनने के बाद मतलब कोई भी ऐसा कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं करा, स्पोर्ट्स तो के समझ लिए नहीं आया मतलब क्यों बने वो। किसी भी लहजे से। आप उसका ये कर सकते हो. दिस इज अगेन, दीज आर वेरीफाइबल फैक्ट्स. राज्यसभा की अटेंडेंस हमको सबको पता है, दिस इन पब्लिक डोमेन, राइट? यार मुझे लग रहा है कि इस केस में भी ना वो नॉमिनेटेड मेंबर था, पता नहीं उसकी अपनी मंशा भी थी कि नहीं, ये ऐसे उसको ऐसे रिस्पेक्ट एक ओहदा दिया गया था, जैसे कईयों को वो ओहदे दे देते हैं कि आप यहाँ के डीजीपी हैं, ठीक है, नहीं ये वैसा नहीं है। नहीं मैं मान गया ये, लेकिन ये नॉमिनेटेड सदस्य था, ही वाज नॉट एन इलेक्टेड। और नॉमिनेटेड वाले में एक केस ये भी होता है, जब आप नॉमिनेटेड राज्यसभा के मेंबर बनते हो तो शायद आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी आपसे अपेक्षाएं और बढ़ जाती हैं, शायद ऐसा कुछ रहता है। लेकिन अगर वो नहीं आया तो मैं तो अभी भी मानता हूं कि जैसे वो कप्तानी के लिए नहीं बना था ना, मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिटिक्स के लिए भी नहीं बना है। मुझे नहीं, वो और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जरूरी नहीं है कि हर प्लेयर एक लेवल पे एडमिनिस्ट्रेट भी कर पाए आपको। मैं ये उसको बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता ही नहीं कि इवन एज अ पॉलिटिशियन ही वुड हैव डन। वो वैसे एनजीओ के लिए करता रहे, बेटर है। वो उसकी अपनी चैरिटी कर रहा है, किसी को पर्सनल जाके कर रहा है, आज वो किसी की हेल्प कर रहा है, वो एक अलग लेवल है। मेरे को नहीं लगता कि ऐसे पॉलिटिशियन उसको कुछ करने की जरूरत है। वो मेरा अपना ओपिनियन ये है। मैं मगर उसको लेना ही नहीं चाहिए था ना, अगर नॉमिनेटेड ये बात से मैं आपकी अग्री हम्बली करता डिक्लाइन कर हूं। ये बात से मैं आपकी अग्री करता हूं। परसेप्शन तो लोगों में ही आएगा मैं भी अग्री मीडिया में करता हूँ कि he shouldn't have accepted that। ये उसको पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी अगर वो नहीं कर सकता, जस्टिस नहीं कर सकता था। राइट। ये मैं आपसे अग्री करता हूं। दूसरी चीज ये उसके 22 साल के करियर की बात है ना। आज तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वेदर ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट और नॉट, जो कि प्रूवन फैक्ट है। पॉलिटिक्स में कैसा था, पॉलिटिक्स में उसने किया कि नहीं किया कुछ, मतलब हम एक और आदमी को भगवान मानते हो, अमिताभ बच्चन है, मतलब लॉट ऑफ पीपल कैन एग्री। वो भी पॉलिटिक्स में घुसे थे, हमको वो भी नहीं पसंद है। तो हर आदमी की जिंदगी के कुछ एस्पेक्ट होते हैं जो आपको नहीं पसंद आते हैं। और मैं तो आज भी कहता हूँ कि अगर हो सकता है सचिन तेंदुलकर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़े तो हो सकता है वो जीत जाए, लेकिन उसे लड़ना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पॉपुलैरिटी की वजह से जीत जाएंगे। वो उस वजह से नहीं जीतेंगे कि यार ये शायद कोई वैसा एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर पाए। वो पॉपुलैरिटी की वजह से भले ही जीत जाएंगे। राइट। इमोशन के मतलब हम जैसे लोग जो कॉल पे आते हैं, हम लोग जो वोटिंग करने जाएंगे तो हम इतना इमोशन है सचिन के लिए कि हम लोग किसी और को वोट दे ही नहीं। वो इस वजह से जीत जाएंगे, कैपेबिलिटी की वजह से नहीं जीतेगा पॉलिटिक्स। तो उसे करना ही चाहिए, वो बात हम आपकी अग्री करते हैं। लेकिन वो टॉपिक एक अलग टॉपिक है। आज तो जो है सचिन के क्रिकेट के करियर की बात हो रही है। सो आई थिंक वी ऑल इन एग्रीमेंट, राइट अभिषेक? नहीं, एक लास्ट ब्रिंग इट ऑन। राहुल तेरे पास एक और है, कोई और है? अच्छा, ब्रिंग इट ऑन। ये कौन सा लास्ट हुआ जो तूने प्रेजेंट कर पा रहा है, पूछ रहा है लोगों से? जो मैंने थोड़ा सा नोटिस किया है, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ उस पे, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है वो ये कि एक स्पेसिफिक नंबर क्यों दिखता है सचिन के रिकॉर्ड्स में कि 200, 400, 100, 200 टेस्ट मैच, 100 सेंचुरीज, वहीं पे आके क्यों रुका? और जैसे हमने भी एक वो करा था, एक कंपनी जिसने सचिन अ बिलियन ड्रीम्स बनाई है, उस कंपनी का नाम भी मेरे ख्याल से जो तुम ये कह रहे हो ये कंट्रोवर्सी से ज्यादा ये 2 सेंचुरीज, इट्स मोर ऑफ अ कोइंसिडेंस। मतलब आई डोंट थिंक इट्स अ कंट्रोवर्सी। नहीं, पता नहीं कोइंसिडेंस कहूं इसे मैं या क्या कहूं। मुझे लगता है कि ये नंबर शायद पहले किसी ने अचीव नहीं किया था। अगर मुझे मिल रहा है चांस, और इंडिया में देखो, अगर मैं बोलूं, अगर वो सीरीज जो वेस्ट इंडीज की होनी थी वो होनी भी नहीं थी, वो करवाई गई थी, ठीक है। तो इट वाज स्पेसिफिकली डन फॉर सचिन। अगर आपको याद हो, फेयरवेल मिला ही नहीं। देखो इसके साथ क्वेश्चन और जोड़ते हैं में जो किसी और प्लेयर को ऐसा फेयरवेल भी नहीं मिला। अगर आपको याद हो कि ओडीआईज में जो
100 था बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो कितने स्ट्रेच के बाद आया था, और हम सब ऑलमोस्ट ऊब चुके थे कि भाई ये कब आएगा कब आएगा। सचिन भी ऊब चुका था कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, 100 क्यों नहीं बन रहा मेरा। वो जो बना उसमें भी इंडिया हार गई। बिल्कुल, वो मैच इंडिया हार गया था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि व्हाई इट इज लाइक, नहीं, फिर तो एक चीज और भी होती है, वो फिर वो 4900 पे क्यों रुक गया, फिर एक और कर लेता, 50 भी हो जाती, चलो वनडे में 50 शतक हो गए। वनडे में 49 क्यों है? हाँ, फिर नहीं वो तो वैसे लोग भी होते, तो मैं वो वाला लोग हूँ। नहीं, वो पॉइंट तुम्हारा है, लेकिन यार ये लेकिन अब उसने तो एक कोई लोग ऐसा होते नहीं हैं कि उसने मेरे ख्याल से 463 वनडेज खेले हैं, राइट, तो वो फिर वो मैं बस ये 40-50 और खेल के हमें 500 भी कर वो वाला फेज याद है सबको कि जब वो कितना स्ट्रगल कर रहा था अपने 100 के लिए। बिल्कुल हाँ ठीक है। ठीक है, वो पूरा फेज हमें याद है, और उसने वहीं पे आके इलीसी बन छोड़ा, गया था। और उसके हाँ। बाद 200 टेस्ट मैच एग्जैक्ट उतने। तो वो मेरे को लगता है कि नंबर, जैसे मैं धोनी को हमेशा इसलिए बहुत सही मानता हूँ कि भाई वो बंदा नंबर्स पे पड़ता ही नहीं वो। भाई मेरे को राहुल, यार जैसा देखो, ने कहा ना कि दिस इज मोर ऑफ अ कोइंसिडेंस, और वो 100 वो मैं मान सकता हूँ कि जो लास्ट वाला 100 था वो एक फीट थी जो किसी ने अचीव नहीं की थी, तो राइट, वो हो ऐसे जाए। ही 200 टेस्ट वाला भी किसी ने अभी तक देखिए, अब स्टीव वॉ कितना लंबा खेला है, लेकिन 160-70 टेस्ट मैच खेल के ही रिटायर्ड, ठीक है। अब सचिन को मौका मिल रहा था, बीसीसीआई के पास मौका था कि वो ऐसा कर सकता है, वेस्ट इंडीज तो नहीं कर सकता ना कि 2 टेस्ट मैच से ज्यादा खेल ले। हाँ, तो मैं बस वो आज ये बोल रहा हूँ कि नंबर्स उसके दिमाग में थे। देखो, अब आप एक देखो, मैं तेरी बात को यहाँ पे बड़ा करता हूँ राहुल, आपने कहा सचिन की वजह से बीसीसीआई, तो बीसीसीआई ने एक तरीके से उसको वो फेयरवेल दे दिया इस तरीके से कि यार बिल्कुल, इतना कुछ इसने किया है, चलो 200 टेस्ट मैच इसके बंद, चाहे वो 4 महीने बाद खेल लेता कहीं और जाके, हो सकता है 202 हो जाते अगर शायद उसका अगला कोई और ट्रिप लग जाता, अभी ठीक है। वेस्ट इंडीज वो खत्म टीम को बुला लिया। वो अब उसको श्रीलंका के लिए, भाई वो तो तैयार है, उनके पास पैसा नहीं है, वो तो तैयार वो है, अफोर्ड नहीं कर, वो तो अब उसके ऊपर एक चीज और भी हुई थी, उनको तो एक, अपने एक, बर्थडे पार्टी बुला ले, वहां जाएंगे वो। हम्बल भी है, मैं तो उनको ऐसी टीम समझता हूँ कि वो फिर भी बहुत अच्छे हैं यार, मुझे वो पता नहीं बंदे बहुत अच्छे लगते हैं, वो कहीं भी आके खेलते हैं, वो कुछ भी करते हैं। अभी देखिए, अगर मैं कुछ सही जीत भी बताऊं आते तो हैं भाई। जीत भी जाते हैं, देखो T20 में तो अभी उन्होंने जीते ही हुए 2 वर्ल्ड कप, चाहे वो कैसी भी टीम रही हो। तो आप चाहे जो भी बोल लो, अलग अलग कर दो ना वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को, एक एक प्लेयर एक एक मैच जिताने के लायक है, यार लेकिन वो एक आपके साथ कर दो तो बिल्कुल हार अपनी जाते हैं। जहाँ पे अपनी लीग अपनी चलती है, आईपीएल हाँ, हो आप गया, बिग देखिए, बैश हो गया ना भाई, धूम है इन लोगों की। देखो धूम है, लेकिन एज ए टीम नहीं जीत कैरेबियन पाते। प्रीमियर लीग देखिए, आप जानसी लीग देखिए, इन लोगों के नाम चलते हैं यार, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। उन्होंने देखो, पीएसएल भी मोर पॉपुलर देन करा दी है सचिन, वर्ल्ड में। मोर देन सचिन, ये अब ये 130 करोड़ इंडियंस चाहते थे कि वो 200 टेस्ट मैच खेले, वो 100 करे, वो बिल्कुल ये करे। तो हाँ, बिल्कुल अब बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं कह रहा हूँ कि चाहते तो हम बीसीसीआई बहुत अगर कुछ है। उसको 99 पे अगर पुश आउट कर हम देता, तो 400 भी चालेंगे। मैं सोच रहा You're था। right. I think you're absolutely right. This is, I think he did that for us, not for Yes, या himself. for the billion people that, yeah, that is, ये जो हमारा I बिलीफ and हाँ, we था can उसके say ऊपर, that उसका वो उसने 100 हमें एक तरह वो से 100 capable of सैकड़े नहीं doing it. मारता, बिकॉज वो हमारे 100 लिए इट वुडंट सैकड़े हैव नहीं मैटर्ड। तो हाँ, हम ज्यादा उदास हो जाते हैं, उससे ज्यादा हम लोग उदास हो जाते हैं कि यार सबसे ज्यादा 99 करके चला इतना गया। नजदीक एक चीज आकर और के चला गया। आज कि भी वो देखिए केपेबल आप, भी था ये आ, अचीव करने के लिए। अब देखिए हम अजरुद्दीन ने अपने लक्ष्मण से करियर नहीं में, एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो 200 टेस्ट मैच खेल जाए हमारे लिए। ऑब्वियसली राहुल द्रविड़ ने मेरे ख्याल 160 खेले हैं, आप देखिए, जहां तक मुझे याद है राहुल द्रविड़ 160 भी भाई 162, अलग ही लीग का बंदा था वो। वो मैं तो उसको वो टेस्ट क्रिकेट में उसको वो कभी बहुत अलग, बड़ा रेट प्लेयर है, करता कभी हूँ। और बहुत बात बहुत बड़ा करेंगे, प्लेयर है, हाँ, वो कभी और बहुत हाँ, बात बड़ा करेंगे। के लिए फिर से हम लोग को 1.5 घंटा चाहिए, वो तो उसके बहुत बड़े फैन हैं। उसको बड़े और फैन और कभी सहवाग को भी मैं बहुत हाई रेट करता हूँ हाँ, टेस्ट क्रिकेट में। हाँ। सहवाग तो, लेकिन मैं किसी दिन बात करना चाहूंगा फोर्थ इनिंग्स प्लेयर्स की, उसमें आप हाँ, लक्ष्मण का स्थानीय लक्ष्मण ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई इम्पॉसिबल है। ऑस्ट्रेलिया में जाके जिस बंदे ने परेशान किया है उस हाँ, एरा में। हाँ। फोर्थ इनिंग्स वाला बंदा ऑब्वियसली मोस्ट स्पेशल है। वो और जो चलो, कि यार वो टेल एंडर्स टेलेंडर के के साथ साथ लगा बैट रहता था करना। बेचारा। अभी तो फोर्थ इनिंग स्पेशल बनती है ना, जब आप नीचे वालों को खिलाते हो अपने साथ, भैया अब मेरे साथ तो बैटिंग या कर जा। एक स्टीव वो बहुत तगड़ा खेलता था। बिल्कुल, वो दिस इज भी व्हाई फोर्थ आई इनिंग प्लेयर कंसीडर था। दिस इज व्हाई आई कंसीडर सम ऑफ द से टेस्ट तुम प्लेयर जैसे कुछ MS कहना धोनी हो चाहते गया। नहीं, मैं कहना नहीं चाहता। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों के पास टाइम है ना, और बात कर सकते हैं?
हाँ कर सकते हाँ, बहुत टाइम है। we need to I mean I need to go in a couple of minutes, so हाँ you guys can continue. हाँ ठीक है, See, जिसको I'll also जो give रह my सकता है वो, closing. कोई दिक्कत नहीं है। I'll just give my closing comments हमारा because कोई मुझे वो भी call back न्यूज़ करना चैनल है। नहीं है, अपना गोस्वामी की हमें दूसरा नहीं, प्रोग्राम लगाना है। एक टॉपिक और लेके आए थे आज, लेकिन सचिन ऑब्वियसली जब आएगा तो सारे टॉपिक्स फिर धरे के धरे रह यार जाते हैं। ऐड का टाइम हो गया, ऐड तो ऐड का टाइम, अब हमारे पास स्पॉन्सर्स तो नहीं है। एमडीएच मसाले का ऐड है हमें। अच्छा ये अरे रहने दे, वो दादाजी आ जाएंगे यार, वो बहुत अभी तक उनकी खबर सुशांत और ये भाई वो अच्छा, मसालों में सचिन तेंदुलकर हो दादाजी। अच्छा तो क्योंकि सब लोगों के पास टाइम नहीं है तो मैं एक ट्रिविया लेकर आया हूँ, करेक्ट? तो क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है ट्रिविया के। ओके ऑसम। तो हाँ, तू तेरे को पूछना है राहुल, पहले स्टार्ट कर दे। छोटा सा मैं ट्रिविया। पूछता हूँ एक पहला क्वेश्चन, अगर आप सचिन के बहुत बड़े फैन हो। हाँ अच्छा आप बताओ कि सचिन की 100 है दोनों में, टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई में, सेकंड नंबर पे कौन है और उसके कितने 100 हैं? रिकी पॉन्टिंग 70। और कोई? विराट कोहली ही होगा। मेरे ख्याल से विराट कोहली के हो गए अब, नंबर विराट एग्जैक्टली कोहली है। 74 शायद। नहीं, रिकी चलो पॉन्टिंग मैं भी बताता हूँ, है। ज्यादा वो नहीं है, दादा सही है यार, दादा लेकिन 71 है उसके, रिकी पॉन्टिंग 71 हाँ और 71 विराट कोहली की 70 है। हाँ वही मतलब एक आध का ही फर्क था, मुझे कुछ ध्यान था। तो भाई अभिषेक पुरोहित हम्म ऑलमोस्ट 30 सेंचुरी का फर्क है भगवान में और बाकी आम जनता में। अभी ऑलमोस्ट हाँ ओके चलो, मेरे पास एक क्वेश्चन है। Who holds the world record for maximum number of runs scored by the opening partnership? मतलब सचिन और पार्टनरशिप सौरभ। दोनों में? Opening partnership. सचिन एंड सचिन सौरभ इन सौरभ। ओडीआई। सचिन एंड 142। दादा और तेंदुलकर। दादा और तेंदुलकर कितने नंबर ऑफ रन है और 6000 समथिंग रन है, 21 सेंचुरीज है। 6000 प्लस है यार शायद उनके रन। हाँ, 6600 कुछ है। हाँ 6609 दादा बहुत खेले हैं भाई in वो, बहुत खेले 136 innings. हाँ That बहुत includes 21 century partnership and 2350 run partnership. मैं पूछूं एक? हाँ पूछ। ओके 1998 शारजा कप तो आपको पता ही होगा। हाँ उसमें तीसरी टीम थी, कौन सी थी? न्यूजीलैंड। सही है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। अच्छा पहला मैच कौन सी तारीख को खेला गया था? अच्छा शाबाश। क्योंकि मुझे याद है। इतना मुझे याद है, मार्च अप्रैल की बात है, क्योंकि अप्रैल में तो सचिन का बर्थडे था एक दिन। तो 17 अप्रैल फ्राइडे था उस दिन। हाँ वैसे ही कुछ। और इंडिया न्यूजीलैंड का मैच था जिसमें शायद 80 रन मारे थे याद है सचिन मेरे ने, को। जिसमें शायद 80 रन मारे थे सचिन ने। 24 अप्रैल था। नहीं 24 अप्रैल को तो सचिन का बर्थडे था, जिस दिन सैंडस्टॉर्म आया था। पहला नहीं, मैच था सैंडस्टॉर्म इंडिया और नहीं न्यूजीलैंड का 17 अप्रैल को। नहीं, हाँ, सैंडस्टॉर्म 80 रन मारे थे सचिन ने, 80 रन मारे थे शायद उसमें। जो सैंडस्टॉर्म वाला था ना, दैट वाज बिफोर 24, वो 22nd को था। बर्थडे से पहले एक बर्थडे वाले दिन भी शतक मारा था, उससे पहले भी। राइट हाँ बर्थडे वाले दिन 134 मारा था उसने। हाँ ठीक है 24 अच्छा, अप्रैल। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि इंग्लैंड में सचिन ने पहला सेंचुरी मारा था, बट कितने नंबर ऑफ रन्स बनाए थे? 119 ओके ठीक है। अच्छा when was the first ODI played and it was between whom and where? फर्स्ट ओडीआई प्लेड मतलब यार इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज की शायद। दिस इज नॉट रिलेटेड टू सचिन, देन आई विल नॉट आंसर। वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया नहीं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। सब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं कर रहा है जो कर रहा है क्रिकेट में। हाँ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, बट कहाँ पर? इंग्लैंड इंग्लैंड नहीं मेलबर्न। हाँ मेलबर्न में, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। हाँ। और कोई राहुल तेरे पास है सचिन से रिलेटेड एक और? मेरे पास एक और है। सचिन से पूछना भाई, पूछो यार, आप लोगों में से कोई पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं। शूट अगर मैन आपको कोई शूट। क्वेश्चन। सचिन को अर्जुन अवार्ड कब मिला था? अर्जुन अवार्ड तो बहुत पहले मिल गया। भारत खत्म होने के बाद 98 ईयर 2000 आई थिंक 99 98 1994
94 हाँ अर्जुन अवार्ड तो बहुत 94? पहले मिल गया होगा। मैं Wow. वही कह रहा हूँ, पहले मिल गया होगा अर्जुन अबे अवार्ड तू तो सोच भाई, बात जब वो होती बच्चा है। था तब उसको अर्जुन तो अवार्ड के अर्जुन पूरे और करियर तब निकल जाते स्पॉन्सर हैं। नहीं थे उसके बैट पे, स्पॉन्सर नहीं थे। और सुन 94 में तब तो मिडिल ऑर्डर में खेलता था ओडीआईज में वो वो ओपनिंग कर ली थी 94 में पहली बार उसने। हाँ, He's हम like डिबेट the- कर 4 में सोच ये 4-5 साल क्वेश्चन के लगे बाद उसको हाँ। हम निकल डिबेट कर क्यों रहे हैं? इस क्वेश्चन के आंसर के बाद तो डिबेट छोड़ देनी चाहिए। मैंने कहा था कि वो 98 तो बहुत देर हो गई होगी, तब तक तो उसको खेल रत्न मिल गया होगा यार। हाँ, अच्छा भाई लोग एक्चुअली में उसको राजीव गांधी खेल खेल क्या रत्न जाना है मिल आपको चुका था। सुशांत भाई, क्या कुछ कह रहे हैं? हाँ तो अब निकलना पड़ेगा हमको थोड़ा अच्छा सा। अच्छा अच्छा ठीक है। चलो, ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग So- सुशांत भाई। थैंक So यू let's- फॉर अरे लेट्स रैप अप। Let's सब wrap लोगों को up. जाना। या So we'll Closing- gather closing- next week. closing comments दे दो भैया सब, क्लोजिंग कमेंट्स दे दो। क्लोजिंग कमेंट्री ये है, अरे देयर विल बी हाँ there will be many more champions, there would be many more record breaking players, but there is only one Sachin and there will never be another Sachin. एब्सोल्युटली राइट। and he's the god of cricket. He's the god of cricket. For us, Abhishek बहुत he's the god of optimistic है। और cricket. इस He'll तरह always से be the god of cricket. इस तरह से 100+ करोड़ लोग इमोशनली किसी से अटैच नहीं हो सकते अब, जैसे सचिन से हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। वो एग्जांपल यही है ना, we are not that emotionally attached to Virat Kohli, who हाँ, अब would किसी से हो ही नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ। हो ही नहीं सकता है। हाँ। वो आज स्पेस ले भले ही लिए उसके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फैंस हो सकते हैं, सचिन को भी क्रॉस कर गए हो सकते हैं, लेकिन वो सब सोशल मीडिया है भाई। ये जो भाई। असली चीज है ना, जो रियल वर्ल्ड है, उसमें हम्म। सचिन के जैसी चीज नहीं हो सकती, कनेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, यार सिंपल सी बात है कि पहला प्यार तो पहला प्यार ही होता है। हाय 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 बिल्कुल। हाय बस हाय। खत्म। यही है इंडिया मेरा का क्लोजिंग विकेट कमेंट। इंडिया का वीडियो विकेट भाभी जी ना गिरने देखने। पे इंडियन सिर्फ एक ही बार ताली बजाते थे जब तेंदुलकर को ग्राउंड पे आना होता था। उसके आखिरी मैच में भी जब जो है वो मुरली विजय आउट हुआ था तो सबने ताली बजाई थी, और वो इसीलिए बजाई थी क्योंकि जब तेंदुलकर सचिन उधर। आएगा। यार अभी देखो ना, हमें नंबर्स याद है, हमें विराट कोहली नंबर्स याद नहीं है, हाँ सचिन के अब वो नंबर कनेक्ट नहीं है यार। अब वो आप देखो, सचिन के दौर में हमें दूसरों के नंबर तक याद रहते थे यार उस दौर में। आज किसके याद है हाँ। तुम? सचिन ने टोटल 34,257 रन बनाए, कोई मुझे विराट मोंगिया तक के नंबर याद रहते थे उस टाइम यार। बताओ, वो जबकि मुश्किल से खेलने आए, कभी रुका होगा वो इतनी अब ये देर। नैन मोंगिया अगर ये हमारी फीड देख रहे होंगे तो हाँ। कोई बात नहीं, बहुत होता है। खुश हो जाएगा। होता है। He will take it with whatever you say. पिंच ऑफ सॉल्ट। Yeah, Okay. whatever. चलो अभिषेक Thank और you. राहुल, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर फर्स्ट यूट्यूब चैनल, और ऐसे ही आते रहेंगे हम लोग, Thank बातें you भाई। करते रहेंगे। थैंक थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अभी And नेक्स्ट thank you. टॉपिक पे Thanks नेक्स्ट for having me, guys. बता Thanks for देंगे having हम। me. It was a wonderful discussion. कुछ चीजें तो हाँ। ऐसी थी जो नहीं पता थी हम लोगों पहली को बार सचिन के सामने बाद। आई। हाँ, पहली बार और सामने। और correct, एक्चुअली में correct. ये भी हमने चैनल इसलिए खोल रखा है कि ताकि हम लोगों को आपसे जितना नॉलेज मिल सके और वी कुड डिस्ट्रीब्यूट सम नॉलेज। सो थैंक यू एक्चुअली एवरीवन, गगनदीप, सौरभ, सुशांत भाई एंड जॉयदीप दादा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप। आपने बिल्कुल मतलब आपके खेले हुए चेहरे देखकर ही जब सचिन की डिस्कशन कर रहे थे ना, तो मजा ही आ गया था। मतलब इतने एंथू से बोल रहे थे ना। आप देखिए कि उनके खेल बंद करने के बाद भी आज आप जब नाम लेते हो उनका, तो आपके चेहरे पे स्माइल है। तो कितना बड़ा प्लेयर है वो कितना बड़ा ह्यूमन बीइंग है। वो प्लेयर तो बहुत बड़ा है वो। बहुत बड़ा ह्यूमन बीइंग है वो। वो हाशिम आमला ने कहा था ना कि इफ यू आर ऑन अ प्लेन विद Plane सचिन with Sachin तेंदुलकर, Tendulkar, नथिंग बस, कैन हैपन टू यू। राइट, बात खत्म। बस। राइट। और वो था ना मोंटी पन्ने से उसने पहला विकेट सचिन का लिया था, उसका आज भी पूछते कि तुम्हारे अचीवमेंट क्या है तुम्हारे क्रिकेट में, क्या था भाई मेरा पहला विकेट सचिन था, बात खत्म। और उस बॉल के ऊपर क्या लिख के दिया था? उस बॉल के ऊपर क्या लिख के दिया था सचिन ने, किसी को याद है? ये वो पहला ऑटोग्राफ लिया था मोंटी पानेसर ने सचिन से, तो सचिन ने उस पे लिखा था वंस इन अ ब्लू मून। अब दोबारा नहीं होगा ये। और दोबारा ये आउट हुआ सचिन भी। का वो अलग चीज है। देखो वो प्लेयर बहुत बड़ा है, इधर से मोंटी पानेसर के लिए कितनी बड़ी बात है कि सचिन उसे कुछ लिख करके दे रहा है। आप ये देखिए। हाँ, उसको इंटरव्यू पूछा भाई अचीवमेंट क्या है, कह रहा सचिन का पहला विकेट लिया था, बस बात खत्म। अब कुछ बोलना रह गया तो बस ठीक है। चलो गाइस, चलो, See you next time. Thank you everyone for coming up. Next Thanks, week. Abhishek. Thank Thanks, you. Rahul. Have a nice time. Bye. Bye bye.